Let's start the analysis and review of SimCAT 2 VARC section. So what we will do is take a look at, first of all, go through the RCs and see which ones should we attempt initially. कौन से थोड़े से लग रहे हैं जो शुरू में करने चाहिए, कौन से जो बाद में करने चाहिए. And we will of course go through through each and every RC, each and every question, and discuss in detail about the questions, the various options, which one is correct, why, and of course, as usual, a few discrepancies that are found in each mock, whether it is SimCAT or CLCDC or time AIMCAT. A couple of questions are a little dicey, so I will point out those, and also I will point out uh, which were easy, which were moderate, which were difficult. So when we start the test, the first RC comes up. It has been customary in the past to approach Jane Austen not only as a great novelist, but also as a representative of critics called the feminist tradition. At first glance, this seems appropriate enough. After all, it has been always one of those universally acknowledged truths that Jane Austen's narrative centered on love and marriage, feminism, coherent body of opinions. So when I read this novelist analysis of female identity, contemporary pressures, liberation movement, so there's a lot of heavy stuff here. Okay, female identity, feminist tradition. So and at first glance, this looks a little dense passage. If you look at the second paragraph also, Sylvia Mayer's study of womanhood in Jane Austen's novel is illustrative. Starting point of her paper is an objection of Ian Watt's view. Okay, so this tells me that as far as possible, इसको बाद में किया जाएगा. इसको शुरू में attempt करने से फायदा नहीं है because it is really dense. There are a lot of terms like this जो मुझे immediately strike हो रहे हैं यहाँ पे देखते से ही within the first minute of it, post Freudian and all of this post Freudian schema. So I would do it later. Let me go to the second passage. 20th century scholarship advancing the modern human conceit conspired against our ability to notice a divergent, layered and conjoined projects that make up the worlds. Entranced by the expansion of certain ways of life, scholars ignored question of what else was going on. As the progress tales lose traction, however, it becomes possible to look differently. Okay, ठीक है. इसमें concept of assemblage is helpful. Assemblage means getting together diverse things, objects. So ठीक है, this is okay. This looks like it can be attempted initially. So इसको रख लेते हैं अभी. Let's look at the third one. Historian Theodore Zeldin once wondered how different the history of the world might seem if you told it not through the story of war, politics, but through the development of emotions. One way of tackling it might be to write the history of shyness. Nations may be unable to avoid fighting each other because of myths and paranoia. Shyness is one of the counterparts. तो ये shyness के ऊपर है. Oldest odd state of mind offers no benefit. Born shy. ठीक है, आसान है. ये कोई मुश्किल नहीं दिख रहा है. So we can definitely keep it. I would rate it before the other one. So मेरे हिसाब से 3 so far, then 2, then 1 so far. Country goes to war to achieve certain aims. These aims could include vanquishing an existential threat, territorial conquest, regaining those lost territory, regime change, retribution, coercing the adversary, success. War के ऊपर है. कि war के क्या aims होते हैं and stuff like that. So ठीक है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं दिख रहा है. So I would now change my view 3, 4, 2, 1. So this would be the order in which I would approach. ये decide हो गया. Now, as usual, when I decide this and I go to the VA questions to do them first. Generally, मेरा view ये रहता है कि VA questions पहले करना better होता है. You get a little momentum and then you go and do RCs. So it is of course to each his own. However, I like to start with VA. So let's start with VA. Now, traditionally, if you see para-summary questions of IMS are not really that great. ये बात बहुत बार कर चुके हैं. I don't know why they don't improve. And this also again reinforces that belief. अगर आप ये पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें काफी कुछ बहुत टाइम लग जाएगा. हमें समझ ही नहीं आएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. All systems of morality are based on idea that action has consequences that legitimize or cancel it. ठीक है, यहाँ तक आ गया. A mind imbued with the absurd merely judges that those consequences must be considered calmly. It is ready to pay up. In other words, there may be responsible persons, but no guilty ones in its opinion. At very most, such a mind will consent to use past experience as a basis for its future actions. Time will prolong time. Life will serve life in the speed that is both limited, bulging of everything in himself. I don't know. I'm totally lost. By the time I reach here, I have totally lost interest in this
पैरा समरी, एंड आई वुड से दैट इसको मैं एट दिस स्टेज आई वुड नॉट अटेम्प्ट इट। एट दिस स्टेज मैंने ये छोड़ दिया शुरू शुरू में, एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन. That's what I did when I was attempting this particular mock. However, as we need to discuss and I need to give you the answers and explain them, so let's do this. So, all systems of morality are based on the idea that action has consequences. Okay? Mind imbued with absurd merely judges that these consequences must be considered calmly. It is ready to pay up. So there may be responsible, but there are no guilty ones in its opinion. Such a mind will consent to use past experience. So ये जो mind है ये morality के ऊपर नहीं जाएगा, ये basically consequences को भी नहीं देखेगा, ये past experience को basis बनाएगा future action. Time will prolong time, life will serve life. In this field that is both limited and bulging with possibilities, everything in himself except his lucidity seems unforeseeable to him. What rule then could emanate from that unreasonable order? The only truth that might seem instructive to him is not formal. It comes to life and it unfolds in mind. The absurd mind cannot so much accept ethical rules at the end of the evening. Rather illustrations and breaths. तो जो absurd mind है वो पुराने experience को देखता है, वो ethical rules को नहीं देखता, और जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उन्हीं को देखता है. इस तरह से कुछ बोल रहा है. ठीक है, तो बहुत ही वेग, बहुत ही absurd जैसा पैसेज है, and I can tell you very clearly based on my experience of cat for so many years, इस तरीके का absurd पैसेज एटलीस्ट आज तक कैट में नहीं है. ऑप्शन देख लेते हैं. मोरालिटी सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंशियल एक्शंस. ठीक है भाई, बट एन absurd माइंड व्यूज कॉन्सिक्वेंसेस कामली. ठीक है, absurd माइंड judges those consequences must be considered calmly. Focusing on personal lucidity. Lucidity means clarity, कि उसको सिर्फ अपना accept his lucidity और कुछ नहीं दिखता है. And seeking truth in experiences rather than ethical rules. तो यही मुझे तो ठीक लग रहा है. All moral system legitimize action based on consequences. Legitimize और cancel भी तो लिखा हुआ है, तो ये तो ही गलत हुई है. An absurd mind acknowledging this uses past experiences. Absurd mind does not acknowledge this. वो तो consequences को calmly view करता है जैसा लिखा है, तो ये यहीं पे गलत हुई है. और यहाँ पे the absurd mind recognizing that actions have consequences in moral systems dismisses guilt and focuses on past experience, future decisions, finding truth in the unpredictable. Again, यहाँ पे भी वही दिक्कत है कि recognizing that actions have consequences, वो consequences को calmly देखता है, वो उसको जज नहीं करता. In moral systems, actions are judged by the consequences. However, mind sees no guilt, only responsibility, and relies on human experiences over formal rules to form its understanding of the truth. लेकिन ये mind जो है वो कौन सा mind है? Absurd mind है, right? यहाँ पे absurd mind है, तो इसलिए ये mind यहाँ पे गलत है. Correct answer was A. So this question should not have been touched even with a barge pole. Okay, I can tell you अगर आप इस क्वेश्चन को करने में लग गए तो आपके 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और फिर भी शायद गलत हो जाए. तो इस तरह के क्वेश्चन से दूर रहना है. Next one. Climate change and racism are two of the biggest challenges of the 21st century. They are also strongly intertwined. There is a stark divide between who caused climate change and who is suffering. People of color across global south are those who will be most affected by climate crisis, even though their carbon footprints are generally low. Similar racial divides exist within nations too due to profound structural inequalities laid down by a long legacy of unequal power delivery. ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज और रेसिज्म है काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि जो किसने कॉज किया और कौन उसके इफेक्ट सफर कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है. और ये रेसिज्म से भी इंटरट्वाइंड हो जाता है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, पीपल ऑफ कलर, दैट मीन जो साउथ, ग्लोबल साउथ में मोस्टली विल हैव अफ्रीकन्स, विल हैव इंडियंस, यू विल हैव एशियंस, सो दे आर कॉल्ड पीपल ऑफ कलर, और लैटिन अमेरिकन्स. तो ग्लोबल साउथ के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, जबकि उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है इसमें कार्बन फुटप्रिंट. इसी तरह से रेशियल डिवाइड भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती है. For some, it can be disconcerting to hear terms such as racism and white supremacy used in discussion with about climate change. Climate change is often understood as an environmental issue, one that we are in altogether, and therefore not something that could be anyway construed as racist. तो ये अगर हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में रेसिज्म और वाइट सुप्रीमेसी वगैरह बातें सुनते हैं तो बड़ा लोगों को डिसकंसर्टिंग मीन्स अनईजी लगता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम एक एनवायरमेंटल इशू मानते हैं जिसमें हम सब एक साथ हैं. इसमें हम अलग अलग नहीं है बेस्ड ऑन आवर रेस और एनीथिंग. तो देन therefore this is unsettling for people. तो इसमें जो मेन आइडिया यही बताया कि क्लाइमेट चेंज और रेसिज्म दोनों चीजें जो इंटरट्वाइंड है, अफेक्ट कर रही हैं. ग्लोबल साउथ के लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इससे, रेशियल डिवाइड भी हो रखे हैं लोगों के. लेकिन ये चीजें अगर हम क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव में सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज वी डोंट एसोसिएट क्लाइमेट चेंज विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स.
Climate change is a significant challenge that disproportionately affects people of color in the global south due to their low carbon footprints and long standing. ये बिल्कुल गलत है ये, यहाँ तक तो यही सही था, ठीक है, बट ये कॉज एंड इफेक्ट गलत दे दिया कि इनके लो कार्बन फुटप्रिंट के कारण इनको अफेक्ट करता है, ये तो गलत है। लो कार्बन फुटप्रिंट उसने बोला जरूर था, बट दैट वाज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कि डिस्पाइट देयर लो कार्बन, यहाँ अगर लिखा होता डिस्पाइट तो ये शायद सही होता, तो ये डिस्पाइट गलत है, उसने ड्यू टू लिख दिया उसमें, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। तो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज के कारण क्लाइमेट चेंज अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो तो रेसिज्म हो रहा है उसके, और इसमें रेसिज्म की कोई बात नहीं है, इसलिए ये गलत है। 21st century is marked by climate change and racism, which are intertwined with climate change impacting people of color the most due to what is seen as an environmental issue. Climate change impacting people of color due to what is seen as environmental issue, ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है। ये यहाँ तक सही है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है। 21st century is marked by climate change and racism, which is intertwined with climate change impacting people of color the most. Fine. But due to what is seen as environmental issue, ये बिल्कुल ही गलत है। This is totally wrong, and therefore this is also. Climate change and racism, crucial challenges of 21st century, are connected. People of color in the global south bear the brunt of climate change despite their minimal contribution. ये जो despite मैंने आपको बताया था वो उसने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने यहाँ तक का तो सब कैप्चर कर लिया, he has captured very well this in a perfect manner, but point is ये कैप्चर नहीं हुआ। it is disconcerting to hear terms such as this। ठीक है, देखते हैं क्या वो लास्ट में है। Discussions of climate change involve racism and white supremacy, involving racism and white supremacy are unsettling। तो यहाँ पे डिस्कस किया है इसने, as climate change is often viewed as universal environmental issue not linked to racial inequality। सब क्लास। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई, अब देखिए आप प्रॉब्लम मेरे सामने बहुत बड़ी आगे खड़ी हो गई। एक ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, वो मुझे परफेक्ट समरी देता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये जो डी ऑप्शन है ये मुझे यहीं तक की समरी देता है, ये यहाँ से यहाँ तक की समरी दे रहा है। इसमें ये बात नहीं करी कि रेसिज्म और वाइट सुप्रीमेसी के बीच, सॉरी क्लाइमेट चेंज और रेसिज्म के बीच में they are intertwined, and who is bearing the brunt of climate change, it is the people of global south who are people of color also। वो सब बातें कहाँ हुई है, यहाँ पे तो सिर्फ ये बोल रहा है कि जो डिस्कशंस आर अनसेटलिंग बिकॉज क्लाइमेट चेंज को यूनिवर्सल एनवायरमेंटल इशू माना जाता है, तो इसलिए ये तो ठीक नहीं है। ये कवर कर रहा है इतना एरिया, दो सेंटेंस, ये कवर कर रहा है थोड़ा ज्यादा बड़ा एरिया, तो ऑब्वियसली जो थोड़ा ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है वो आंसर सही होता है, इसलिए यहाँ पे सी आंसर सही है, डी सही है। नाउ डी सी इज नॉट अ ग्रेट आंसर आई वुड से, बिकॉज सी डज नॉट कैप्चर दिस पार्ट। So when I was doing this, I was specifically looking for, I thought D में वो आ गया, but then D में ये वाला नहीं आया जो इसमें C में आया। ये दोनों तो A और B तो पहले ही बाहर कर दिए, and therefore C became the correct answer। So as far as this passage is concerned, C was the correct answer. However, not a great summary. So as usual, IMS still has to show that they are serious about summaries, because again, this kind of summary, this was still much better than the first one. All right, let's go to the jumble. Given the immense scale of the challenge, a common framework is essential for effective global action, promoting consistency in definition, principles, metrics, diverse। ये हमें कहीं सेंस नहीं दे रहा, दो दिस इज, इसमें कहीं लिंक नहीं है किसी प्रीवियस सेंटेंस से। हाउएवर it doesn't tell us what is this passage about। Introductory sentence should tell us what the passage is about। Football or soccer has a rich history with varying rules across regions, but in the mid 19th century, standardized regulations emerged, enabling global competition and rapid development। This definitely gives us a background, a base from where to start। ये कह रहा है कि फुटबॉल या फिर उसको सॉकर बोल लीजिए, इसकी रिच हिस्ट्री है विद वेरिंग रूल्स, अलग अलग रूल हुआ करते थे, लेकिन मिड 19th सेंचुरी में स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशंस आ गए। उसके कारण ग्लोबल कंपटीशन होने लगा और रैपिड डेवलपमेंट हुआ। Similar to how shared rules propelled for football's growth, addressing climate change necessitates unified guidelines। क्या इसके बाद ये आएगा, लेकिन अभी फोर्थ में इट स्टैंड्स, टुडे इट स्टैंड्स एज द मोस्ट वाइडली प्लेड एंड फॉलोड स्पोर्ट अराउंड। तो ये डेफिनेटली टू के बाद फोर आएगा, फोर फॉलोज टू, बिकॉज टू स्टार्ट्स विद फुटबॉल के अंदर अलग अलग रूल्स होते थे, लेकिन मिड 19th सेंचुरी में रेगुलेशन स्टैंडर्डाइज हो गया और ग्लोबल कंपटीशन हुआ, रैपिड डेवलपमेंट हुआ, एंड टुडे इट स्टैंड्स एज द मोस्ट वाइडली प्लेड and followed sport across the globe, boosting an unparalleled level of popularity and engagement among people of all ages में। तो ये बोल रहा है कि देखिए ये जो हमने रेगुलेशंस को स्टैंडर्डाइज किया, इससे कितना फायदा हुआ, इससे फुटबॉल का ग्लोबलाइजेशन हो गया और आज ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। तो सेम रूल्स, सिमिलर टू हाउ शेयर्ड रूल्स प्रोपेल्ड फुटबॉल ग्रोथ, ये बहुत क्लियरली बता रहा है आपको। इसके बाद थ्री कि जो वन और टू और फोर में कैप्चर हुआ है, the way shared rules have propelled football growth, addressing climate change necessitates unified guidelines।
तो हमें क्लाइमेट चेंज को भी अगर एड्रेस करना है तो हमें यूनिफाइड गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, मतलब सब अपने मन से नहीं करें कि किसी का मन कर रहा है एक्स कर लेते हैं, किसी का मन कर रहा है वाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Given the immense scale of challenge, a common framework is essential for effective global action, promoting consistency in definitions and metrics and blah blah blah. तो वन इसके बाद में आके आराम से फिट जाता है। Somebody might say 2 4 के बाद वन क्यों नहीं आ सकता? भाई वन बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वन में किस चीज को आप स्केल ऑफ चैलेंज किस चीज के लिए है और किस चीज के लिए हमें कॉमन रूल्स और कॉमन गोल करना है, वो तो बताया नहीं है। वो तो आपको थर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के लिए, इसलिए 2 4 1 नहीं हो सकता, 2 4 3 1 ही है। So this was, of course. So let me label the questions. This is an absurd question. I would not call it difficult. This is an absurd question. Right? This was a moderate question, not difficult to follow. Okay, and this was, I would say, easy to moderate. It was not really very difficult also, because not really difficult because it's my clues the man. Okay. Geopolitical conflicts ranging from localized insurgencies to great power confrontations have placed the intricate interplay of economics and security at the forefront of global concerns. Okay, हो सकता है opening statement. Though these factors alone would signify a turbulent era marked by economic volatility, blah blah blah. These factors, तो ये dependent sentence. The shifting global order necessitates a re-evaluation of economic security agenda. This can very well also become the opening statement. Crisp, precise statement है. Adding complexity, so adding करना है, मतलब कि पहले कुछ होना चाहिए, तो इसलिए 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, 3 से स्टार्ट कर लो या 1 से कर लो। तो शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर necessitates a re-evaluation of economic security agenda. 3 से बेटर लग रहा है स्टार्ट करना, क्योंकि ये शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहा है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा का री इवेल्युएशन करने की बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों है वो वन में बताइए कि जियोपॉलिटिकल conflicts ranging from localized insurgencies to great power confrontations have placed the intricate interplay of economics and security at the forefront. तो इसलिए इसलिए है शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर, इसीलिए नेसेसिटेट कर रहा है रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये सब जो हो रहा है इसके कारण ये हमारा ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एडिंग, तो किसी चीज में जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है और उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना, तो वो वन में दी हुई है, एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू व्हाट वाज गिवन इन वन। इमर्जिंग मार्केट्स आर चैलेंजिंग द एस्टैब्लिश्ड थॉट्स, मतलब ये जो जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रही है, मतलब एक तरफ से फर्स्ट इज जियो पोलिटिकल एंड देन टू ऐड टू द कॉन्फ्लिक्ट द इमर्जिंग मार्केट्स आर चैलेंजिंग established powers, reshaping balance of economic influence through novel networks and alliances. ये दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन आ गया है। दो these factors alone would signify a turbulent era, the equation must also consider rapid technological advancement, including introducing new security। और इसके ऊपर एक और चीज आ जाएगा, ठीक है, तीसरी चीज आ गई है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। राइट, सो 1 2 3, तो इसके कारण नए सिक्योरिटी चैनल आ रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट लिया था, दिस वाज द ओपनिंग स्टेटमेंट दैट टेल्स यू दैट द शिफ्टिंग ऑर्डर दिस इंट्रोड्यूस्ड, कि ग्लोबल ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है इसमें हमें रीवैल्यूएशन करना चाहिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा का, और वो किस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। उसमें सबसे पहला जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दूसरा इमर्जिंग मार्केट्स आगे आ रहे हैं, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा रैपिडली। सो वेरी नाइसली 3 1 4 2 fits it, right? So I would call this moderate to little difficult because थोड़ा समझना था इसमें, there were not too many clues given, just एक ही clue था, एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी दूसरा clue था। तो ठीक है, जो लोग थोड़ी रीडिंग जिनकी अच्छी है उन्हें थोड़ा मॉडरेट या इजी भी लग सकता है, लेकिन जो लोग थोड़ा रीड ज़्यादा नहीं कर रहे हैं अभी, उनके लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट। The culture war at Harvard reflects a broader debate about the role of higher education in shaping societal values. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस, तो ये तो हार्वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर ये हार्वर्ड यहाँ आ ही नहीं सकता, तो वन से तो ये वैसे ही बाहर हो गया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज वी नो, हमें भी पता है कि हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे अमेरिका के जितने भी कैंपस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, कॉन्फ्रंटेशन हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। हैज रिसेंटली बिकम बैटल ऑफ व्हाट इज टर्म्ड एज कल्चर वॉर। कल्चर वॉर, दिस टर्म ब्रॉडली रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनलिस्ट और कंजर्वेटिव वैल्यूज एंड प्रोग्रेसिव और लिबरल आइडियोलॉजीज। अब द कल्चर वॉर एट हार्वर्ड, कल्चर वॉर, राइट, और ये द कल्चर वॉर तो बहुत क्लियरली टू पे आ सकता है, मतलब एक इमीडिएट हमारी इंस्टिंक्ट है कि हम उसको टू पे रख दें। ये तो देखते हैं। The culture war at Harvard reflects a broader debate about the role of higher education. The debates at Harvard encompass a range of issues from free speech and academic freedom to diversity and inclusion politics. So when we have a sentence like this, that culture war reflects a broader debate, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में मुझे जो समझ में आता है कि इसके पहले कोई और डिबेट से कोई और डिस्कशंस होने चाहिए। तो वंस दोज हैव बीन
considered, then we can say that culture war reflects a broader debate. Right? तो इसलिए टू पे थोड़ा सा न्यूबियस लग रहा है कि debates at Harvard encompass a range of issues from free speech and academic freedom to diversity and inclusion policy. It is not, अभी क्या थ्री पे आ सकता है, it is not just about policy changes, these discussions. ये these discussion अगर लिख दिया तो फिर ये थ्री पे नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है ना, तो इसलिए इसको हटा दो. बिकॉज अगर इसको हटा के देन लेट्स रीड डिबेट्स एट हार्वर्ड एनकम्पास अ रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम फ्री स्पीच एंड एकेडमिक फ्रीडम टू डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग पॉलिसी. इट इज नॉट just about policy changes. These discussion challenge the very identity and mission. तो ये जो these discussions है वो ये broad range of issues, wide range of issues की बात है. फोर पे आ सकते हैं. As an academic powerhouse, Harvard stance on these issues could influence other institutions and the direction of higher education in America. The culture war at Harvard reflects a broader debate about role of higher education in shaping societal values. As an academic powerhouse, Harvard's stand on these issues could influence other institutions. These issues could refer to this broader debate about role of higher education in shaping societal values. So Harvard stance could influence other institutions and direction of higher education. तो कल्चर वॉर जो हार्वर्ड पे हो रहा है ये ब्रॉडर डिबेट है, तो दिस कुड शिफ्ट टू अदर institutions also, and it could shape the direction of higher education in America. तो ये बहुत क्लियरली फोर्थ में ज्यादा बेटर फिट हो रहा है बजाय इसके कि फिफ्थ. सो एक तो हमने जो इसको फोर पे रखने की बात की है वो इसलिए की कि रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर डिबेट. दैट मीन्स इसके पहले जो हो रहा था वो थोड़ा नैरो है इशू. मतलब ये जैसे ये जो फ्री स्पीच, एकेडमिक फ्रीडम, डिबेट्स एट दिस एनकम्पास रेंज ऑफ इशूज, इसको अर्थ लग रहा है कि थोड़ा ये नैरो चीजें. राइट, दीज आइडेंटिफाई द वेरी आइडेंटिटी एंड मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. लेकिन द कल्चर वॉर रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर डिबेट अबाउट रोल ऑफ हायर एजुकेशन. तो इसका जो कल्चर वॉर है इसका रोल थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो ये दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी अफेक्ट कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ हायर एजुकेशन. दैट मीन्स दिस ब्रॉडर डिबेट अबाउट रोल ऑफ हायर, तो रोल ऑफ हायर एजुकेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ हायर एजुकेशन, अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सब भी इसमें आ जाएगा. इसलिए ये फोर्थ पे बेटर है. तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. दिस वाज ऑफ कोर्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इसमें टू और फोर्थ में आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड फॉर अ व्हाइल. देन आई वाज इनिशियली चूजिंग टू, बट देन आई थॉट दैट फोर वाज बेटर. Growing disillusionment and depression among younger Chinese is not merely a symptom of recent economic slowdown. Now, this when a sentence like this, your mouth should start watering because ये आपको इसके अगला सेंटेंस में दिखाएगा. It is not merely A but B. See, when you get a sentence like this, the something is not merely A. So not merely means not only A but B. ठीक है, तो वो देखते हैं. ए तो ये वन तो हो गई. In China, rising concern is being noted regarding mental health of its younger population. This issue has become increasingly prominent, with many attributing it to the current economic challenges the country faces. अब क्या यहाँ आ सकता है? आ सकता था वैसे तो. Growing disillusionment and depression is not merely a symptom of the recent economic slowdown. ये जो economic challenges हैं इससे लिंक हो रहा है. However, this perspective overlooks deeper, more systematic causes that have contributed to this growing trend. क्या ये यहाँ पे आ सकता है? This perspective. So, growing disillusionment is not merely a symptom of recent economic slowdown. However, this perspective overlooks deeper, more systematic. तो अगर आपने इसको टू पे लगा दिया सपोज, तो क्या ये however justified है? When we are saying that it is not merely a symptom of recent economic slowdown, मतलब ये उसी का slowdown का इफेक्ट नहीं है, ये सिम्टम नहीं है, ये ओवरलुक कर रहा है डीपर, मोर सिस्टमेटिक कॉजेज. तो हाउवर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे. हाउवर इज नॉट नीडेड एट ऑल बिकॉज when we say that this is not merely a symptom of A, it shows it is, but also B means, but more systemic causes, bigger systemic causes have contributed. It is not merely this, but bigger systemic causes, right? So, however, this perspective overlooks deeper, more systemic causes. तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. The problem, so it is not merely a symptom of recent economy. The problem has been decades in the so recent का नहीं है. This has been decades in the making. So ये this is not recent. Okay, this has been going on for a while, and owes much to China's rich education system, past fertility, and tight rural urban migration restrictions. थ्री में बहुत अच्छा आ रहा है.
दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फोर्थ में नहीं आएगा क्योंकि दीज फैक्टर्स कौन से हैं? दीज फैक्टर्स तो ये हैं, कौन कौन से हैं? रिजिड एजुकेशन सिस्टम, फास्ट फर्टिलिटी, टाइट रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो ये जो 30 फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे, तो इसलिए फोर्थ में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर वॉज 3 हियर, विच मीन्स दिस। ओके नाउ, ऑफ कोर्स इसमें आप सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे ये भी यहाँ पे आएगा, लेकिन ये हाउएवर से हमें समझ में आएगी ये यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। So this I would call it moderate, moderate to difficult. Let me say moderate to difficult. With species extinction rate soaring, the UN aims to protect 30% of Earth's land and ocean by 2030. Conservation AI researchers have pioneered models that effectively analyze footage and images from drones and camera traps, identifying wildlife, including critically endangered species, and tracking their movements. This platform allows approved users to upload data and opt in for email notifications upon detecting species of interest. This platform they have developed this, they कौन है? Conservative conservation AI researchers, free online platform. This platform कहाँ है? ये यहाँ लिखा, automatic analysis, this rapid data processing, this rapid data processing, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. So it's pretty confusing. A says, first sentence is UN aims to protect 30% of Earth's land and oceans, species extinction rates soaring. 30% of Earth's land and oceans. और ये वाले जो चार क्या बता रहे हैं आपको? ये बता रहे हैं कि footage, images from drones, camera traps identifying wildlife including critically endangered species. तो ये आप स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की नहीं बात कर रहे हो. ये बोल रहा है द यूएन एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड ओशन, whereas here he is talking about protecting the species. कि इसमें आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया है जिसमें ऑटोमेटिक एनालिसिस होता है वीडियोस का, इमेजेस का, रियल टाइम कैमरा ट्रैप फुटेज कि किस तरीके से स्पीशीज आके कहीं फंस गए, या कोई उनका उनको कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, कुछ है, तो इसके कारण यूजर जाके अपलोड कर सकता है डेटा, और फिर कंजर्वेशनिस्ट वहाँ पे स्विफ्टली रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. पोचिंग, कोई जंगल में कोई मारने के लिए आ गया, उनको इलीगल हंटिंग या कोई फायर हो गई है, तो जाके बचा सकते हैं स्पीशीज को. दिस फोर टॉक्स अबाउट सेविंग स्पीशीज. जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए कंजर्वेशन एआई रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं. ये टॉक्स अबाउट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट बढ़ रहा है, तो ये अर्थ की लैंड और उसको प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, अर्थ को लैंड लैंड और ओशन को आप प्रोटेक्ट करोगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू protect the endangered species. But this looks to be a little out of context here, because here conservation AI researchers, they have developed in this platform rapid data. This is basically more of for saving species, and therefore one becomes the one out. और आप इसमें 2 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर 4 पे चले जाओगे, फिर 3 पे आ सकते हो, और फिर 5 पे, तो इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो. Light behaves as a wave when it exhibits properties like interference and diffraction is a fundamental characteristic. The particle nature of light is evident in the photoelectric effect where light knocks off. The wave and particle aspects of the same phenomenon were announced by Niels Bohr. The wave-particle duality of light is the cornerstone of quantum mechanics, illustrating that light possesses both wave-like and particle-like properties. When light passes through a double slit, it creates an interference pattern on a screen, a behavior typical of waves. तो ये पैसेज हमें पढ़ के सारे सेंटेंस ये समझ में आया कि ये बात हो रही है कि जो वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट है, कि लाइट इज सीन एज अ पार्टिकल also and light is seen as a wave also. तो फोर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं. द पार्टिकल वेव डुअलिटी ऑफ लाइट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. लाइट पोजेसेस वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक. अब आप देखिए इस वाले सेंटेंस में वेव लाइक बताया, इसमें भी वेव लाइक बताया, इसमें पार्टिकल नेचर बताया हुआ. ये जो द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द सेम फिनोमिना, विच फिनोमिना, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जो सेम फिनोमिना है ये कौन सा है, नील्स बोर ने कौन सा फिनोमिना बताया. वो आंसर नहीं मिलेगा. आई कैन नॉट कनेक्ट this sentence to any other sentence. Whereas if you see the wave particle duality is a cornerstone, uh, तो इसमें देखिए आप अगर ये 5 और 1 वेव प्रॉपर्टी बता रहे हैं और 2 पार्टिकल बता रहे हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं. तो 3 becomes the odd one. Though it also talks about wave and particle aspect, but of what? Of same phenomena. Which phenomena? We don't know. तो इसलिए इसमें correct answer is 3. So again, I would call this moderate
सो थोड़ा डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखा अगर आप देखेंगे जो उसका ये पार्ट है। अ, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है बिकॉज इसमें भी हमें एक जैसे दिख रहे हैं सारे। थोड़ा सा इट इट इज टेस्टेड योर अंडरस्टैंडिंग, दिस वाज आल्सो दिस वाज मॉडरेट difficult. Jumbles were easier this time. Summary to anyway, the less talked about the better. So इसमें से अगर आपके चार भी करेक्ट हो गए तो आप ठीक ठाक कर दिया, चार या पांच करेक्ट कर दिया आपने तो यू डन गुड जॉब। ऑलराइट, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's move your attention to RCs. So as I had created the sequence 3 4 2 1, तो मैं इसी ऑर्डर में इसको अप्रोच करता हूँ। तो पहले लेट्स डू द थर्ड पैसेज। The historian Theodore Zeldin once wondered how different the history of the world might seem if you told it not through the story of war, politics, or economics, but through the development of emotions. One way of tackling it might be to write the history of shyness. Bemused nations may be unable to avoid fighting each other because of the myths and paranoias that separate them. Shyness is one of the counterparts to these barriers on an individual level. तो अब ये एक नई तरीके की एक अप्रोच लेके आए हैं थियोडोर जेल्डिन। ये कह रहे हैं कि हम जो एक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है इसको वॉर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से नहीं देखना चाहिए बल्कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस से देखना चाहिए। और उसके लिए हिस्ट्री ऑफ शाइनेस लिखनी चाहिए, किस तरह से हम ये जो शाइनेस एक इमोशन है हमारे अंदर ये कैसे आया। तो जो नेशंस हैं उनके इतने उनमें मिथ्स और पैरानोया, पैरानोया मतलब कि जो दे आर सो फियरफुल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट दे कीप फाइटिंग वॉर्स। तो ये नेशंस जो है ये अनेबल होते हैं फाइट, मतलब वॉर करते चले जाते हैं। शाइनेस जो है एक ऐसा काउंटर पार्ट है उन बैरियर्स का ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। मतलब ये जो बैरियर्स होते हैं लोगों के बीच में उनका काउंटर पार्ट शाइनेस। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस। फॉर चार्ल्स डार्विन दिस ऑड स्टेट ऑफ माइंड वाज वन ऑफ द ग्रेट पजल्स इन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, for it appeared no benefit to our species. However, in the research that began in 70s, Harvard psychologist Kagan suggested that about 10 to 15% infants are born shy. Being easily fearful and less socially responsive, they react to mildly stressful situations with quicker heartbeat and higher blood cortisol levels. चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके हिसाब से कोई भी ट्रेट अगर एक स्पीशीज में पास ऑन होता है तो वो उसको कुछ सिलेक्टिव एडवांटेज देता है। So if any trait is being passed on to the offspring, then it offers some selective advantage. Okay, and that is called the natural selection. लेकिन ये जो शाइनेस ये है, ऑड स्टेट ऑफ माइंड है, इससे क्या बेनिफिट है वो वी यूज टू वंडर। लेकिन जब रिसर्च शुरू हुई तो किसी ने कहा, एक जो केगन है, जेरोम केगन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा 10-15% इन्फेंट्स पैदा ही शाय होते हैं और ये फियरफुल होते हैं और लेस सोशली रिस्पॉन्सिव होते हैं। और जब भी कोई माइल्डली स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, किसी से मिलने को कहा जाए इनको, तो इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ब्लड कॉर्टिसोल लेवल। अराउंड द सेम टाइम American animal behaviorist Stephen observed a similar percentage of shyness in monkeys with the same increased heart rate and rise in blood cortisol. Blood testing and reassigning shy infant monkeys to outgoing mothers suggested that this shy trait was hereditary. Somi's work also might have inadvertently pointed out to the evolutionary usefulness of shyness. When a hole in the chain link fencing around the center's primate range gave the monkeys a chance to get out, the shy ones stayed put while the bolder ones escaped, only to be hit by a truck when they crossed the road, right cross the road. अब ये सेम जो ह्यूमन में जैसे शाइनेस होती है वैसे इन्होंने एनिमल के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश की और इन्होंने पाया कि एनिमल में भी सिमिलर परसेंटेज ऑफ शाइनेस होती है और इससे भी सेम उसका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ब्लड कॉर्टिसोल और हार्ट रेट बढ़ जाती है, इनकी भी बढ़ जाती है। अब इन्होंने क्या किया कि टेस्ट करके ब्लड और शाय इन्फेंट मंकीज को आउटगोइंग मदर के साथ लगा दिया, तो भी इन्हें वो मंकी शाय का शाय रहा। दैट मीन्स अगर एक शाय मंकी को अपने एक आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्ट मदर के साथ डाल दिया तो भी वो मंकी शाय ही रहेगा। दैट मीन्स शाय ट्रेट वाज हेरिडिटरी। और इसने एक तरह से इनएडवर्टेंटली, दैट मीन्स विदाउट इवन नोइंग, अननोइंगली एवोल्यूशनरी यूजफुलनेस ऑफ शाइनेस कि इसकी भी एक एवोल्यूशनरी यूजफुलनेस है। क्या है वो कि सपोज करो आपने एक जो मंकी जहाँ पे है वहाँ पे एक थोड़ा सा चेन लिंक फेंस में छोटा सा होल कर दिया है
जगह दे दी निकलने की। तो जो मंकी वहां पे है, तो जो थोड़े से आउटगोइंग मंकीज है वो भाग गए वहीं से, और शायद वंश वहीं पे रुके रहे। तो इससे क्या हुआ कि जो भागे थे मंकीज वो या तो उन्हें ट्रक से मार दिया, और कुछ और तरीके से या तो मर गए होंगे, ओनली टू बी हिट बाय ट्रक विद ड्राइव। तो शाइनेस का एवोल्यूशनरी एडवांटेज है कि कम से कम वो मरने से बच गए। So this paragraph explores the same shyness in monkeys. Higher primates are social creatures, hardwired to want to meet and mate, but there might be also some value in being cautious and risk avoiding traits that might over-evolve into excessive timidity. Neither Kagan nor Suomi suggest that shyness is fixed at birth. They see it as a case study in the rich interplay between nature and nurture. Similarly, for Antonio Damasio, professor of neuroscience at the University of Southern California, shyness is a secondary emotion. Unlike primary emotions such as anger, fear, and disgust, where there is a large biological and universally felt component, shyness is tuned by experience, leaving it open to a huge amount of cultural conditioning, historical variation, and definitional ambiguity. तो अब इसमें आ, ये कह रहा है कि जो हायर प्राइमेट्स में जो मंकीज होते हैं, दे आर सोशल क्रीचर्स, लेकिन कुछ कुछ उनको फायदा भी होता है शाइनेस में। ठीक है, और केगन और सोमी दोनों ने कहा कि देखिए शाइनेस, ऐसा नहीं है कि शाइनेस फिक्स्ड हो गई बर्थ पे, कि मतलब अगर शाई है तो वो जिंदगी भर शाई रहेगा। ठीक है, देयर इज अ रिच इंटरप्ले बिटवीन नेचर एंड नर्चर। मतलब अगर थोड़ा बॉर्न शाय है तो भी वो हो सकता है कि बाद में ठीक हो जाए। और एंटोनियो डमासियो जो है ये भी कह रहे हैं शाइनेस इज अ सेकेंडरी इमोशन, द प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी इमोशन इज बेसिकली ड्यू टू बायोलॉजिकल, लार्ज बायोलॉजिकल एंड यूनिवर्सली इफेक्ट, सभी को होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा एंगर सभी में है, और फियर डिस्गस्ट सभी में होता है, लेकिन शाइनेस सेकेंडरी इमोशन है। ये जरूरी नहीं कि सभी में। इट इज ट्यून्ड बाय एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से ट्यून हो जाती है, लिविंग इट ओपन टू अमाउंट ऑफ कल्चरल कंडीशनिंग, हिस्टोरिकल वेरिएशन, डेफिनेशनल। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो ये ओपन टू कंडीशनिंग है, दैट मीन्स इसको साथ साथ अब चेंज भी हो सकती है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि ये जरूरी नहीं है कि ये शाइनेस अगर किसी को हो तो वो जिंदगी भर रहे। शायद कोई भी अगर मंकी भी है तो नेचर और नर्चर वाली बात है कि थोड़ा नेचर से थोड़ा नर्चर से आता है, और ये सेकेंडरी इमोशन है। Shine is something that adjusts to different cultural and historical contexts and surely must have taken an oppressive new form with the emergence of modern notions of privacy and private life. Until a few hundred years ago, life was lived far more in public. For example, it was quite normal for people to urinate, defecate in public places. Even in private houses, whole family would sleep, eat, and socialize together in the same room. When gradually bodily functions and aggressive language and behavior were rendered increasingly invisible in polite society, thanks to what the late sociologist Norbert Elias called the civilizing process that took place in the Western world from 16th century onward. As greater physical and psychological boundaries grew up around individuals, particularly among relative strangers in public, there were more opportunities for awkwardness and embarrassment about when these boundaries should be. तो ये शाइनेस जो है ये किस तरीके से आई? इट कैन एडजस्ट टू डिफरेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जब ये अ, एक नया नोशन आया प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ का, तो इसके नए फॉर्म्स भी आ गए। क्योंकि फ्यू इन 100 ईयर्स तक लोग लाइफ जो है वो पब्लिक में रहते थे, प्राइवेसी नाम की चीज नहीं थी। लोग जो अपने नॉर्मल रूटीन यूरिनेशन डेफिकेशन पब्लिक प्लेसेस में करते थे, एक दूसरे के सामने करते थे, दे वर नॉट शाय टू डू दैट। एंड प्राइवेट हाउसेज में भी फैमिली सब एक साथ सो जाती थी, खाती थी, सोशलाइज करती थी, तो देयर वाज नो प्राइवेसी। तो इसलिए शाइनेस की सवाल ही नहीं आए। यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सोशल कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ तक शाइनेस की जरूरत ही नहीं थी। देन ग्रेजुअली बॉडी दी फंक्शंस, एग्रेसिव लैंग्वेज बिहेवियर, और ये जो पोलाइट सोसाइटी बनी उसमें जो सिविलाइजेशन आई, सिविलाइजिंग प्रोसेस, उसमें कहा गया कि नहीं ये सब चीजें एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट में होनी चाहिए। तो देन greater physical and psychological boundaries grew up, and then therefore they started becoming more shy in awkwardness and embarrassment about कि ये boundaries कब क्रॉस कर दी। तो ये पैसेज में शाइनेस के ऊपर बात की गई है कि हाउ शाइनेस एज एन इमोशन डज इट प्ले एनी रोल इन ह्यूमन एवोल्यूशन। क्या मंकीज में भी होता है? क्या ये बर्थ से हेरिडिटरी है, या क्या ये चेंज हो सकता है, कोई कंडीशनिंग हो सकती है? तो ये सब बातें इस पैसेज में की गई है। नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट्स व्हाई वी चोज इट in the first place. Uh, and let's look at the questions. All of the following can be inferred from the passage except environment and upbringing have no influence on the origin of shyness. ये environment and upbringing have no influence on origin of shyness. देखो origin of shyness जो है
वो कह रहा है कि 10-15% में शाइनेस जो है आपकी बर्थ से आती है। आपको बताया ना इसमें 10-15% इन्फेंट्स। बाकी के जो लोग हैं जो शाय हैं वो तो आगे जाके आएगा ना, एनवायरनमेंट में और अपब्रिंगिंग से आएगा। और वो जैसे हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि जब तक लोगों के सामने एक दूसरे के सामने रहना और पब्लिक में सब कुछ करना अलाउड था, या इट वॉज अ नॉर्म, तब तक तो शाइनेस नहीं थी। उसके बाद में फिर जब ये हो गया तो शाइनेस आई। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग हैव नो इन्फ्लुएंस। इसलिए यही यहाँ पे गलत हो गया है। इनफैक्ट दिस इज द करेक्ट आंसर, वी कैन कीप इट। शाइनेस इन सम पीपल में हैव अ जेनेटिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट। वो तो बोल रहे हैं ये जेनेटिक कंपोनेंट 10-15% बोल रहे हैं कि इन्फेंट्स आर बॉर्न शाय। तो सम पीपल, है ना, सम पीपल, तो ये करेक्ट। तो दैट मीन दिस इज नॉट द आंसर। शाइनेस इज अ नॉर्मल वेरिएशन इन ह्यूमन टेम्परामेंट एंड नॉट नेसेसरली अ प्रॉब्लम। ये भी कई जगह बताया हुआ है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रादर ये तो आपको हेल्प भी करता है कई बार। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये एवोल्यूशनरी एडवांटेज भी इसने दिया है। तो इसलिए वी कांट से दैट दिस इज नेसेसरली अ प्रॉब्लम। तो मतलब कह सकते हैं, वी कैन से दैट यस दिस इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉब्लम। शाइनेस कैन वेरी एंड बी मैनेज्ड ओवर द कोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। यस, ये भी कह रहे हैं कि अपब्रिंगिंग से चेंज हो जाएगा और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। राइट, शाइनेस इज ट्यून्ड, शाइनेस इज ट्यून्ड बाय एक्सपीरियंस, leaving it open to a huge amount of cultural conditioning, historical variation, and definitional ambiguity. तो ये दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो नॉट दिया था, तो करेक्ट आंसर ए है कि environment and upbringing have an influence. So I would say this was easy question. All of the following if false could be seen in accordance with the passage except. अभी देखो दो नेगेटिव आ गए हैं, this is negative, this is negative, which means this is the positive question कि which of the following statement is in accordance with the passage. देखो ये बहुत इजी हो जाता है, हमें दो नेगेटिव को देख के पॉजिटिव बना लिया कि which, इसको रीफ्रेज कर लिया, which of the following is in accordance with the passage। ठीक है, तो shy monkeys adjusted the behavior and became more outgoing when placed with bolder mothers। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। shy monkeys जो थे वो, उन्होंने अपना चेंज किया, रीअसाइनिंग shy monkeys to outgoing mothers suggested that this was hereditary, that means they didn't change। तो ये तो सो shy monkeys adjusted their behavior and became more outgoing गलत है, उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। द शाई मंकीज डेमोस्ट्रेटेड डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड लोअर टिकट, सबसे इजी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, उनकी भी हार्ट बीट बढ़ गई थी। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है उसमें भी, सिमिलर परसेंटेज ऑब्जर्व द सेम इंक्रीज हार्ट रेट एंड राइज इन ब्लड कोर्टिसोल। तो बहुत क्लियर है, ये भी दिया हुआ है। Shy monkeys were the first to leave the enclosure, showing no signs of cautious caution. Shy monkeys were the first, or they stayed put, they did not leave। ये लिखा हुआ है कि shy monkeys जो थे they stayed put, ये भी गलत है। Shy monkeys exhibited similar physiological responses to those observed in shy human infants in mild stressful situations। ये बिल्कुल, so I can call this very easy question. This should have been attempted by all. How does Antonio Damasio's view on shyness primarily differ from that of Stephen Suomi and Jerome Kagan as discussed in the passage? So यहाँ पे जो ये है एंटोनियो डमासो, ये क्या कहते हैं कि शाइनेस इज अ सेकेंडरी इमोशन। ओके, जो प्राइमरी होते हैं जिसमें लार्ज बायोलॉजिकल और यूनिवर्सली फेल्ट कंपोनेंट होता है, शाइनेस इज ट्यून्ड बाय एक्सपीरियंस। और दूसरे जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्टीवन सुओमी और जेरोम कीगन। तो सुओमी जी कह रहे हैं कि neither Kagan nor Suomi suggest that shyness is fixed, but they see a case study in which interplay between nature and nurture। तो ये यहाँ पे सिमिलरली ये भी उससे एग्री कर रहे हैं, सेकेंडरी इमोशन। यहाँ पे हमें बताना है कि उनका डिफर कहाँ कर रहा है। ठीक है, तो डिफर कहाँ कर रहा है, तो इसमें ये जो जेरोम कीगन है ये कह रहे हैं कि 10-15% आर बॉर्न शाय। राइट, तो ये कह रहे हैं कि जबकि ये कह रहा है कि ये तो सेकेंडरी इमोशन है, प्राइमरी इमोशन है ही नहीं। राइट, इट इज कल्चरल कंडीशनिंग, हिस्टोरिकल वेरिएशन, डेफिनेशन। तो ये एक फर्क है। और स्वामी जो है ये क्या कह रहे हैं कि स्वामी भी, जो स्वामी अमेरिकन ऑब्जर्व सिमिलर एंड ही आल्सो सेज दैट कि ये एवोल्यूशनरी हो सकता है। तो ये दोनों कह रहे हैं कीगन और स्वामी कि ये एक बायोलॉजिकल चीज है जो कि बर्थ से हो सकती है, लेकिन हाँ फिक्स्ड एट बर्थ नहीं है।
फिक्स्ड एट बर्थ नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर फिक्स्ड एट बर्थ, दैट मीन्स बर्थ पे हो सकता है वो शाय हो, पैदा शाय हुआ हो, लेकिन जिंदगी भर शाय रहेगा ये जरूरी नहीं है। जबकि तो मतलब दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग, केगन केगन एंड स्वामी आर एक्सेप्टिंग दैट shyness is a hereditary factor or has got a hereditary cause, whereas एंटोनियो डमासियो कह रहे हैं कि ये तो सेकेंडरी इमोशन है, इसमें बायोलॉजिकल और यूनिवर्सल फैक्ट कंपोनेंट नहीं है। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। डमासियो बिलीव शाइनेस हैज नो फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, अनलाइक, ये तो गलत है बिल्कुल। सीज शाइनेस एज हेरिडिटरी, ये गलत हो गया यहीं पे, हेरिडिटरी तो है ही नहीं है। डमासियो व्यूज इट एज अ रिएक्शन शेप्ड बाय कल्चरल एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यस, ये देखिए यहाँ पे, कल्चरल एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कल्चरल रादर देन एज अ इनहेरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इनहेरेंट फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो हमारे हम लेके पैदा हुए है ना, तो ये दोनों कह रहे हैं कि ये लेके पैदा हो सकते हैं, जबकि ये कह रहा है कि 100% ये कल्चरल और पर्सन से, तो ये डिफरेंस है, हो सकता है, रख लेते हैं। ये फिर गलत हो गया, शाइनेस इज फिक्स्ड एट बर्थ, ये गलत हो गया। देखो इसमें इन्होंने बी और डी बहुत इजी दे दिया एलिमिनेट करने के, यू कैन इजीली एलिमिनेट बी एंड डी। नाउ you will be only confused between A and C. Damasio believes that shyness has no physiological manifestation, unlike these guys findings। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होगा इट हैज नो फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि कोई शाय है तो वो उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा, तो ये तो गलत है ना। शाय है तो मैनिफेस्टेशन मीन्स इट विल बी एग्जिबिटेड। तो ऐसा थोड़ी है कि शाय है तो वो नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा। शाइनेस का मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि लोगों से नहीं मिलेगा, दूर रहेगा, डर के रहेगा, टिमिड रहेगा, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें ये थोड़ी बोल रहा है कि देयर इज नो फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इसलिए ये गलत, करेक्ट आंसर इसमें सी। अकॉर्डिंग टू नॉर्बर्ट एलियस द सिविलाइजिंग प्रोसेस, ये नॉर्बर्ट एलियस कब आए थे, इसमें लास्ट पैराग्राफ में आए थे, ये रहे नॉर्बर्ट एलियस। तो इन्होंने कहा सिविलाइजिंग प्रोसेस जो हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके कारण आपका लोगों ने धीरे धीरे बाउंड्रीज ग्रो होना शुरू हो गई और धीरे धीरे शाइनेस इंट्रोड्यूस हो गई। तो एलिमिनेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शाइनेस बाय प्रमोटिंग ओपन एंड पब्लिक, एग्जैक्टली 180 डिग्री रिवर्स। ओके, इट इनफैक्ट it introduces the concept of shyness by restricting open and public social interaction। इस तरह से होता तो सही रहता, तो ये बिल्कुल ही उल्टा है। Dismisses the biological foundation of shyness attributing to societal influence। देखो ये यहाँ पे बायोलॉजिकल फाउंडेशन के ऊपर सिविलाइजिंग प्रोसेस का कोई लिंक नहीं है ना। ये जो सिविलाइजिंग प्रोसेस और नॉर्बर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये लेट साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे बायोलॉजिकल है कि क्या है, ये कोई बात नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ही गलत। associates shyness with broader social and cultural change, particularly in terms of privacy। Yes, बिल्कुल सही है। encourages the expression of shyness as a desirable trait, ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार शाय बन जाओ भाई, खूब शर्माओ लोगों से, बड़ा अच्छा है, डिजायरेबल ट्रेट है, ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा है। करेक्ट आंसर इज कि सिविलाइजिंग प्रोसेस में आपने कहा है कि आप अपना प्राइवेसी को मेंटेन करो, और जो सोशल कल्चरल चेंज आ गए कि लोग इस तरह की चीजें एक दूसरे के सामने नहीं करने लगे, तो दैट गिव राइज टू शाइनेस। All right, so this again passage was, I would say, the easier one. This was, this I can say moderate है, जो मैं आप confuse हो सकते थे, and this was also easy to moderate, easy to moderate. So this passage should definitely have been done. You should have got three at least out of 4. Let's go to the next passage. Country goes to war to achieve certain aims. These aims could include vanquishing an existential threat, territorial conquest, regaining lost territory, regime change, retribution, coercing the adversary to change certain policies, and the like. Success quite logically means the durable attainment of those goals. This simple concept is at the heart of many of America's troubles with irregular wars. तो वॉर के बारे में बताया है कि अगर हम एक वॉर पे जाते हैं तो क्या क्या एम्स हो सकते हैं। कोई सेट को हटाना है, कॉन्क्वेस्ट करनी है, लॉस्ट टेरिटरी लेनी है, रिजीम चेंज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इसमें सक्सेस मतलब ये है कि ड्यूरेबिलिटी अटेनमेंट, कि एक बार हो गया तो फिर वो ड्यूरेबल रहे, ऐसा नहीं कि बार बार फिर लाई हुई है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि अमेरिका की ट्रबल्स विथ इरेगुलर वॉर की बात है।
कि अमेरिका के जो ट्रबल्स होते हैं इरेगुलर, अमेरिका दुनिया भर में जा जाके लड़ता रहता है, वियतनाम में लड़ा, मिडिल ईस्ट में लड़ा, इराक में लड़ा, अफगानिस्तान में, सीरिया, so everywhere it goes. So this is the problem. Decisive victory gaining from enemies, capitulation or annihilation is the most easily understood way to succeed. Sometimes decisive victory is the best path to a favorable and durable outcome. But successful war fighting, even to the point of defeating an opposing army, is normally not sufficient for a durable political outcome. तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने एनिमी ने आपके सामने सरेंडर कर दिया, कैपिटुलेशन मीन दे सरेंडर, राइट, सरेंडर, और एनाइलेशन मीन्स यू वैनक्विश देम, आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय। तो अगर आपने एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दिया या उन्होंने आपके सामने सरेंडर कर दिया, तो ये इजीली अंडरस्टूड है कि ये सक्सीड कर गए आप, डिसाइसिव विक्ट्री हो गई आपकी, और इसी से फेवरेबल और ड्यूरेबल आउटकम मिलेगा। मतलब आप फिर, अब वॉर नहीं होगा और अब आप ड्यूरेबल, ये चीज चल जाएगी। लेकिन सक्सेसफुल वॉर फाइटिंग इवन टू द पॉइंट ऑफ डिफीटिंग एन ऑपोजिंग आर्मी इज नॉर्मली नॉट सफिशिएंट फॉर अ ड्यूरेबल पॉलिटिकल आउटकम। पॉलिटिकल आउटकम के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। वॉर इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट योर थॉमस फॉर्मुलेशन इज अ वायलेंट बार्गेनिंग। Even wars that have involved the surrender of adversaries, armed forces usually involve some sort of negotiation. Winning should not have a competitive meaning. Adversaries tend to have a combination of conflicting and compatible interest. Winning in war means gaining relative to one's aim, not in relation to adversary. Success may be realized through bargaining and mutual accommodation by avoidance of a mutually damaging behavior. There are, he argues, a range of variable sum outcomes available. Viewing success in zero sum terms closes off range of possibilities of winning. For some wars, and in negotiated outcome. In this case, neither party surrenders. Combatants negotiate an agreement that ends the conflict. A war that ends in a negotiated settlement can have multiple winners, even if no one capitulates. तो ये बताया यहाँ पे कि अगर आपने दूसरे की सेना को हरा भी दिया, तो भी जरूरी नहीं है कि एक ड्यूरेबल पॉलिटिकल आउटकम निकले, क्योंकि वॉर एक वायलेंट बार्गेनिंग है। जो वॉर में इवन आर्मी ने सरेंडर कर दिया, उसमें भी कुछ नेगोशिएशन होता है। तो विनिंग का मतलब कॉम्पिटिटिव मीनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग और कंपैटिबल इंटरेस्ट होते हैं। तो आप अपना जो आपको चाहिए वो आप ले लो, नॉट इन रिलेशन टू एडवर्सरी। सी डोंट लुक एट योर विन एज एन एब्सोल्यूट विन। इफ यू स्टार्टेड आउट विद सम एम एंड यू अचीव दैट, देन you won, not necessarily whether you defeated the adversary or not. तो बार्गेनिंग और म्यूचुअल अकोमोडेशन और म्यूचुअली डैमेज बिहेवियर को अवॉइड करके भी हम सक्सेस ला सकते हैं। तो वेरिएबल सम आउटकम, एक होता है जीरो सम, मतलब जीरो सम मीन्स कि इफ इधर आई विन तो वन तो जीरो, और अगर ये है तो आप हारे तो सामने वाला जीत रहा है। ये जीरो सम गेम है, या माइनस वन और प्लस वन कह सकते हो, एक माइनस वन है एक प्लस वन, तो जीरो सम गेम। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि सक्सेस अगर आप जीरो सम में देखते हो तो सिर्फ पॉसिबिलिटी बहुत नैरो हो जाती है, इसलिए आपको वेरिएबल सम में देखना पड़ेगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि -0.5 हो, इसका 0.1 हो या 1 हो, ऐसे तो ऐसा एक सोच सकते हो आप। जीरो सम में बहुत ही नैरो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एंड देयरफॉर इट मे नॉट बी पॉसिबल टू विन। सो यू नीड टू ब्रॉडन दैट, एंड रेंज ऑफ वेरिएबल सम आउटकम्स आना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि आप वन अचीव कर लोगे तो ही जीतोगे। आप बोलेगे ठीक है हम 0.5 भी अचीव कर लेंगे तो जीत जाएंगे, और सामने वाला 0.2 भी अगर खोएगा तो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सब, क्योंकि वॉर्स एक नेगोशिएटेड आउटकम में होते हैं, कोई सरेंडर नहीं करता है। तो एक नेगोशिएशन जो होता है उसमें मल्टीपल विनर्स हो सकते हैं। Third option available to intervening power is to end its direct combat before the war end. Intervening power, और सपोज को ये ए और बी कंट्री है और इसके बीच में अमेरिका आ गया, जो कि हर जगह आ जाता है बीच में, ये इंटरवीनिंग पावर हो गया। तो ये डायरेक्ट कॉम्बैट में उसका रोल कि ये अगर सपोज करो, जैसे अभी सपोज करो यूक्रेन और रशिया, now Ukraine keeps asking for help from America. Of course, America has not provided help in terms of soldiers, और नेटो का मेंबर नहीं है वो, तो अभी तक नेटो की, नहीं तो नेटो आके लड़ रहा होता है इससे। तो अमेरिका ने ये जो नेटो बनाया है इसलिए बनाया है ताकि ये इंटरवीन कर सके दो देशों की लड़ाई के बीच में। तो इंटरवीनिंग अगर सपोज करो यहाँ पे अमेरिका होता, तो वो ये कह रहा है कि इंटरवीनिंग पावर एक जो ऑप्शन था कि आप वॉर खत्म होने के पहले अपना रोल खत्म कर दो, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। इन थ्योरी वंस द इंटरवीनिंग पावर डीम्स अ होस्ट नेशंस कैपेबिलिटी टू बी सफिशिएंट। होस्ट नेशन मतलब सपोज करो कि यूक्रेन है, तो यूक्रेन को उसने कंधा दिया और यूक्रेन अब सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो हट जाएगा, ट्रांजिशन हो गया, और डिटर्मिन दैट फर्दर एफर्ट्स आर नो लॉन्गर नीडेड, इट कैन विड्रॉ इट्स ट्रूप। तो अपनी ट्रूप्स को लेके जाएगा, जैसे अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुका है। इट हैज वी नो दैट यूएस हैज विड्रॉन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान। नाउ वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट थिंग। To achieve this outcome, the intervening power aims to build the capacity of host nation until it overmatches the capacity or capability of adversary.
मतलब आप इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दो कि वो इससे ज्यादा हो जाए, तब आप हट सकते हो मुझसे। बिलीविंग दैट सक्सेस में ओनली बी अटेंड इन जीरो सम heightens the probability of quagmire. Quagmire मतलब स्टैंड ऑफ, ठीक है, स्टेलमेट, कुछ भी नहीं हो रहा है, कि आप अगर जीरो सम की बात कर रहे हो तो। Likewise, it is important to note that various outcomes may entail different levels of durability. Decisive victory that is perceived to impose unnecessarily harsh terms may sow the seeds of revanchism. A negotiated settlement approved by one government governing could be overturned by the next and risks a resumption of uh, a negotiated settlement approved by one governing administration could be overturned by the next administration or and risk a resumption of conflict. तो ये कह रहा है कि अगर आपने जीरो सम में ही सक्सेस को एम्फिसाइज किया है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और इसी तरह से अलग अलग जो आउटकम के जो वेरियस होते हैं आउटकम, वो अलग अलग लेवल ऑफ ड्यूरेबिलिटी ला सकते हैं। डिसाइसिव विक्ट्री है और आपने अगर बहुत हार्श टर्म्स उसके ऊपर इम्पोज कर दिए, तो इससे रिवेंजिज्म मीन्स की रिटेलिएशन टू गेट द ओल्ड टेरिटरी बैक। जैसे अगर आपने जाके रशिया की टेरिटरी एक्वायर कर ली तो वो फिर रिटेलिएट करें। A negotiated settlement approved by one governing administration could be overturned by the next administration. अब आपने सपोज करो यूक्रेन में जाके अमेरिका ने बोला चलो वॉर खत्म, हम जा रहे हैं, तो आप अब केपबल हो गए। पता पड़ा यूक्रेन में इलेक्शन हुए, अगली बार कोई दूसरा प्रेसिडेंट बन के आया, उसने कहा कि आई डोंट एक्सेप्ट ऑल दिस एंड आई एम गोइंग टू अगेन गो टू फाइट। It could be overturned by next administration and risk a resumption of conflict. Negotiated settlements or transition that place the protection of a country's interest into the hands of host nation government could find those interests marginalized or abandoned by that actor. तो अब ये इसमें ये भी बोल रहा है कि जो आपने जो नेगोशिएट किया है ट्रांजिशन करने का, और कंट्री के इंटरेस्ट आपने होस्ट नेशन की गवर्नमेंट के हाथ में दिए हैं, तो वो इंटरेस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मतलब अमेरिका के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर सकता है ये। These war termination considerations seem to be important enough to be considered at the start of policy or strategy process rather than after the default decisive victory has been exhausted. Do not take the first steps, cautions Carl von Clausewitz before considering the last. तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन कंसिडरेशंस हैं, और इसे शुरू में ही देख लेना चाहिए हमें। ठीक है, जब डिफॉल्ट विक्ट्री हो गई है तो उस टाइम पे नहीं करना चाहिए हमें। डू नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप बिफोर कंसीड, आप पहले ही सोच के चलो कि एंड में आपको क्या चाहिए। Okay, so this passage talks about how war has got different aims and war में जो ड्यूरेबल आउटकम होता है वो किन किन चीज़ों पे से अफेक्ट होता है। एक बार आपने लेट्स से यू अचीव अ कंप्लीट विक्ट्री, स्टिल इट मे नॉट गारंटी की ड्यूरेबल पॉलिटिकल आउटकम मिलेगा। ठीक है? और दूसरा ये है कि जीरो सम के टर्म में सक्सेस नहीं देखनी चाहिए, हमें वेरिएबल सम आउटकम देखना चाहिए। देयर ओनली विल हैव मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग। और एक इंटरवीनिंग पावर होती है जो अपनी खत्म कर देता है रोल बिफोर द वॉर एंड ट्रांजिशन कर देता है, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि ट्रांजिशन करने वाली कंट्री जो है उसका कैपेसिटी उसकी बिल्ड हो गई हो और आगे आपको कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं हो। और दूसरा ये भी है कि उसमें रजीम चेंज हो गई तो हो सकता है कि वो वापस से वॉर पे चले जाए, और हार्श में टर्म्स इम्पोज नहीं करनी चाहिए। तो वी शुड बी लुकिंग एट द end result in mind before starting off on a war path with anyone. So let's go to the questions. The passage implies that durability of war outcomes is affected by all of the following except surrender or annihilation of adversary's army. Durability of war outcomes किससे अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट वन? क्या सरेंडर और annihilation ऑफ एडवर्सरीज आर्मी से अफेक्ट होंगे ड्यूरेबिलिटी? लेट्स रीड दिस। Sometimes decisive victory is the best path to a favorable and durable outcome, but successful war fighting, even to the point of defeating an opposing army, is normally not sufficient for a durable political outcome. मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर नहीं है। दैट मीन्स दिस ड्यूरेबिलिटी ऑफ और आउटकम इज अफेक्टेड बाय सरेंडर और annihilation ऑफ एडवर्सरीज आर्मी। अगर आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, annihilation अगर उसका हो गया है, तो वॉर आउटकम क्या ड्यूरेबल होगा? तो वी कैन कीप दिस, थोड़ा सा डाउट है इसमें, इट्स नॉट वेरी क्लियर, विल कीप इट एज अ प्रोबेबल आंसर। द परसीव्ड सीवियरिटी ऑफ इम्पोज, ये तो बहुत जरूरी है, इट इज डेफिनेटली कि अगर सीवियर कंडीशन है तो फिर ये देखिए यहाँ पे डिसाइसिव विक्ट्री दैट इज परसीव्ड टू इम्पोज अननेसेसरली हार्श कंडीशन में सो द सीड्स ऑफ रिवेंज इन द मींस वापस से फाइट।
इसलिए ये तो आंसर नहीं है वेरी क्लियर। शिफ्ट इन गवर्नमेंट लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी दिया हुआ है कि अगर आपका गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ये दिखा है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट अप्रूव्ड बाय वन गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ओवरटर्न बाय नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि इम्पैक्ट करेगा ये। होस्ट नेशंस एबिलिटी टू हैंडल पोस्ट पावर ट्रांजिशन, तो अब होस्ट नेशन की एबिलिटी ये है कि बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द होस्ट नेशन, इंटरवीनिंग पावर एम्स टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द होस्ट नेशन अंटिल इट ओवर मैचेस द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एडवर्सरी, तो ये भी दिया हुआ है। तो इससे भी अफेक्ट होगा, अगर उनका उनके पास में कैपेसिटी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका ड्यूरेबिलिटी। तो ये भी दिया हुआ है, तो अब इसमें से दिया हुआ है, सभी दिए हुए हैं, तो ये एक जो है आंसर, दिस लुक्स टू बी द बेस्ट अमंग दीज। सरेंडर और एनालिशन से क्या ड्यूरेबिलिटी ऑफ आउटकम, वैसे टेक्निकली देखें तो हम बोल सकते हैं कि उससे अफेक्ट नहीं होगा, सरेंडर और इससे अफेक्ट नहीं होगा उससे। दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये जरूर क्या है इसमें कि दिस इज द समटाइम्स द बेस्ट पार्ट, बट दिस इज नॉर्मली नॉट सफिशिएंट फॉर अ ड्यूरेबल आउटकम, बट वेदर इट विल इम्पैक्ट द ड्यूरेबिलिटी दैट डजंट लुक फीजिबल, तो इसलिए ठीक है, शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि दिस मे नॉट बी करेक्ट आंसर, बट लुक्स लाइक कि सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करती है, ये नहीं करती, तो इसलिए हम उसको करेक्ट ना करें। Sometimes when you are confused, then you can eliminate rest of the options. Generally, then you will be able to remove any doubt that you have. Which of the following best summarizes the core concept of America's approach to irregular wars? Core concept of America's approach to irregular wars. ये हमने यहाँ पे देखा था कि success means a durable attainment. This simple concept is at the heart of many America's struggles. Many of America's struggles with irregular wars. Relying on military dominance and physical destruction of an enemy as the primary strategy for success. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। सक्सेस मीन ड्यूरेबल अटेम्प्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट एट द हार्ट ऑफ अमेरिका रेगुलर इरेगुलर वॉर्स, तो इरेगुलर वॉर्स के बाद में बताया गया इतना सब। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन टोटल एनालिसिस ऑफ एडवर्सरी रिसोर्सेज विदाउट एंगेजिंग इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कहीं पे भी होता है, टोटली रॉन्ग। इग्नोरिंग द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फोकसिंग ऑन अचीविंग क्विक डिसाइसिव विक्ट्रीज टू मिनिमाइज अमेरिका, ऐसा भी नहीं है, आपको तो सारी चीजों को फोकस करना पड़ेगा ना। करेक्ट आंसर एक्चुअली डी है इसमें, व्यूइंग सक्सेस एज अचीवेबल ड्यूरेबल पॉलिटिकल आउटकम थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन, नेगोशिएशन एंड, तो जो इनका कोर कॉन्सेप्ट इरेगुलर वॉर्स, तो ड्यूरेबल पॉलिटिकल आउटकम निकलना चाहिए, और इसके लिए मिलिट्री एक्शन, नेगोशिएशन और अकोमोडेशन सभी कुछ है। ऑलराइट, so difficult था क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन was moderate I would say, this question was difficult. According to the passage, viewing success in war through a zero sum lens, zero sum lens से क्या होता है, ये तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते, राइट, ये लिखा हुआ है कि जीरो सम, ये viewing success in zero terms closes off a range of possibilities for winning, मतलब आपकी विनिंग की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नैरो सक्सेस टू फुल विन और लॉस, ब्लॉकिंग अदर सब्जेक्ट, यस, नैरो हो गया ना सक्सेसफुल की फुल विन और लॉस, जो बाकी के जो रेंज ऑफ आउटकम्स हैं वो नहीं आए, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो सकता है। प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट फॉर लास्टिंग पीस, ऐसा कहा। सक्सेस लास्टिंग रिक्योर्स लास्टिंग पॉलिटिकल रिजल्ट बाय मीटिंग द फिफ्थ गोल फुल्ली, पॉलिटिकल बी बेस्ट, नहीं है, करेक्ट आंसर ए है। व्यूइंग सक्सेस नैरोज सक्सेस टू विन, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि आपने यहाँ पे जीरो सम में रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया। ओके, based on the passage, the following is not a risk associated with the concept of transition, not a risk associated with concept of transition. The host nation government sidelining the interest of intervening power, तो ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है कि होस्ट नेशन जो है, हम्म, ये रहा।
यहाँ से आएगा। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और ट्रांजिशन दैट टेक प्लेस प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज इंटरेस्ट इनटू द हैंड ऑफ होस्ट नेशन गवर्नमेंट कुड फाइंड दोज इंटरेस्ट मार्जिनलाइज और अबैंडन्ड बाय दैट एक्टर। तो अमेरिका जैसे यूक्रेन के कुछ ट्रांजिशन कर रहा है और निकल के बाहर जा रहा है, तो अमेरिका के इंटरेस्ट जो है यूक्रेन हो सकता है मार्जिनलाइज कर दे या अबैंडन कर दे। The host nation government sidelining the interest of intervening power बहुत क्लियरली दिया हुआ है। सो दिस इज अ रिस्क। देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली देखना, विच इज नॉट अ रिस्क। सो दिस इज डेफिनेटली अ रिस्क, इट्स नॉट द आंसर। फ्यूचर होस्ट नेशन एडमिनिस्ट्रेशन नलीफाइंग प्रीवियसली रीच्ड, ये भी एक रिस्क है। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। One governing administration could be overturned by next government governing administration. So this also is given. Intervening power exerting excessive control, compromising the notion host nation's independence. ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ। होस्ट नेशनल गवर्नमेंट निगलेक्टिंग इट्स सिटीजन सेफ्टी पोटेंशियली रीइग्नाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये भी दिया हुआ है उसमें। ये वापस से कॉन्फ्लिक्ट को, रिजम्पशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये रिस्क रिजम्पशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो गया कि इंटरवीनिंग पावर एक्सेसिव कंट्रोल, मतलब यूएस एक्सेसिव कंट्रोल लगाएगा यूक्रेन पे, और यूक्रेन की जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देगा, ऐसा तो कहीं नहीं बता। इसलिए सी करेक्ट आंसर। सो आई वुड से दिस वाज इजी क्वेश्चन एंड दिस आल्सो वाज नॉट इजी टू मॉडरेट। ऑलराइट, सो ये दोनों पैसेज तो हमें करने ही चाहिए। राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स गो टू द सेकंड पैसेज नाउ। 20th century scholarship advancing the modern human conceit conspired against our ability to notice the divergent, layered, and conjoined projects that make up worlds. Entranced by the expansion of certain ways of life over others, scholars ignored questions of what else was going on. As progress tales lose traction, however, it becomes possible to look different. ये कह रहा है कि जो 20th सेंचुरी की जो स्कॉलरशिप है, इसमें ह्यूमन कॉन्सीट मतलब एरोगेंस बढ़ी, और इसलिए हम दिस मेड अस नॉट नोटिस मेनी डाइवर्जेंट लेयर्ड एंड कंजॉइंट प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग डाइवर्जेंट लेयर्ड और कंजॉइंट प्रोजेक्ट थे जो कि वर्ल्ड में चल रहे थे, और हमने इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि हम एक सर्टन वेज ऑफ लाइफ को ही से ही एनामर्ड थे, या उसी को हम पे फोकस थे। तो दूसरा क्या हो रहा है दुनिया में, ये हमने इग्नोर कर दिया। और जैसे जैसे प्रोग्रेस टेल्स अब अपना ट्रैक्शन छोड़ रही है, दैट मीन दे आर लूजिंग ग्राउंड। अब हमें पॉसिबल है कि हम वर्ल्ड को थोड़ा अलग से तरीके से देखें। राइट, सो हमने वर्ल्ड को अलग तरीके से नहीं देखा है, और बहुत सारे जो डाइवर्जेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक साथ, उनको हमने नोटिस नहीं किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलीज, असेंबलीज मतलब हमने गैदरिंग कर ली कई चीजों की, is helpful. Ecologists turn to assemblages to get around the sometimes fixed and bounded connotations of ecological community. The question of how the varied species in a species assemblage influence each other, if at all, is never settled. Some thwart each other, others work together to make life possible. Still others just happen to find themselves in the same place. Assemblages are open-ended gatherings. They allow us to ask about communal effects without assuming. तो असेंबलेज जो होती है कि अगर बहुत सारे स्पीशीज एक साथ में हैं, तो इससे हम एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बाउंड्री या कॉनोटेशन को देख सकते हैं। उसमें ये कि कैसे अगर एक असेंबलेज है तो उसमें स्पीशीज जो आए हैं अलग अलग टाइप के, तो वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अ, अब इसमें अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये अभी तक सेटल नहीं हुई बात। कुछ लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, कुछ एक साथ काम करते हैं, और कुछ जस्ट एक वहां पे पहुंच गए किस तरह से, दे आर जस्ट देयर, दे हैपन टू फाइंड देमसेल्व्स देयर, एंड दे आर ओपन एंडेड गैदरिंग्स। एंड इससे हम कम्युनल इफेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं विदाउट अज्यूमिंग अबाउट कम्युनल इफेक्ट्स। तो असेंबलेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हेल्पफुल हो जाता है। असेंबलेज मतलब कि एक कलेक्शन और गैदरिंग्स ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स, बहुत सारे कलेक्शन डाइवर्स लोगों के, दो डाइवर्स चीजों के अगर हो गए तो उसको असेंबलेज है। पैटर्न्स ऑफ अनइंटेंशनल कोऑर्डिनेशन डेवलप इन असेंबलेजेस। To notice such patterns means watching the interplay of temporal rhythms and scales in the divergent life ways that gather. Other authors use assembly with other meanings. The qualifier polyphonic may help explain my reading. Polyphony in music is in which autonomous melodies intertwine. When I first learned polyphony, it was revelation listening. I was forced to pick out separate simultaneous melodies and to listen for moments of harmony and dissonance they created together. This kind of noticing is just what is needed to appreciate multiple temporal rhythms and trajectories of the assemblage.
तो अब ये असेंबलीज जो होते हैं, दैट मीन्स अगर सपोज करो 5 डिफरेंट स्पीशीज एक साथ रह रहे हैं, तो वो 5 डिफरेंट स्पीशीज किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पैटर्न होता है इसमें। ठीक है, अनइंटेंडेड कोऑर्डिनेशन उसमें डेवलप हो जाता है। और इसको हम एक रिदम, इंटरप्ले ऑफ रिदम और स्केल्स के साथ में देख सकते हैं। तो उसको उन्होंने एक पॉलीफोनिक म्यूजिक होता है। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज दैट इफ यू डू नॉट रियली, if you want to appreciate or understand this little better, go to just a YouTube and type polyphonic music and they will show a video। एक मैंने देखा था जिसमें कि एक लेडी सिखा रही थी 6 लोगों को एक साथ गाना गाना। वो उसमें क्या किया उसने, लेडी ने 6 लोग बैठे हुए थे, 1 2 3 4 5 6। तो दिस लेडी वॉज द कंडक्टर देयर, तो दिस लेडी सेड लेट्स सिंग समथिंग टुगेदर। तो उन्होंने नॉर्मल जैसे गाना गाते हैं तो सभी 6 लोग एक ही साथ एक गाना गा रहे थे। देन व्हाट हैपेंड, शी टोल्ड देम दैट नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज पॉलीफोनिक। ये मोनोफोनिक था, what we do, right? So if 6 people are singing the same song, same tune, that is monophonic. Now polyphonic में उसने क्या किया कि जो सॉन्ग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। So these people were supposed to first start the first part of the song. Once that first part was over, then the first part was to be picked up by these, and these guys would sing the second part. तो ये फर्स्ट पार्ट गा रहे हैं, ये सेकंड गा रहे हैं। फिर जब इनका सेकंड खत्म हो गया तो दे अगेन स्टार्टेड द फर्स्ट पार्ट एंड दे टू पिक अप द सेकंड, एंड देन ऑल्टरनेटिवली ऐसा चलता है। तो ये पॉलीफोनिक। तो यहाँ पे पॉलीफोनिक मतलब कि अलग अलग रिदम के साथ, अलग अलग पैटर्न के साथ जो चीजें चल रही हैं वो एक साथ कैसे इंटरप्ले हो रहा है, ये यहाँ पे देखने वाली बात। तो इसको जब ये इसने पहली बार लर्न किया तो इट वाज रेवलेशन। तो लाइकवाइज आई आल्सो वेंट एंड लिसनड, इट वाज रेवलेशन फॉर मी आल्सो। तो अलग अलग सेपरेट मेलोडीज और किस तरह से हारमोनी और डिसोनेंस में हो रही है। तो हमें यही चीज देखनी है कि जिससे कि हम असेंबलेज के अलग अलग रिदम्स को समझ सकें, देख सकें। Imagine the polyphonic assemblage in relation to agriculture. Since the time of plantation, commercial agriculture has aimed to segregate a single crop and work towards its simultaneous ripening for a coordinated harvest. But other kinds of farming have multiple rhythms. In the shifting cultivation in Indonesian Borneo, many crops grew together in the same field and they are quite different schedules. Rice, banana, taro, sweet, blah, 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 mingled. Farmers needed to attend to the varied schedules of maturation. These rhythms were their relation to human harvest. If we add other relation, for example, to pollinators or other plants, rhythms multiply. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अब मैं एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेंगे। तो एक एग्रीकल्चर में मोनोफोनिक मतलब क्या है कि आपने एक क्रॉप को उगा दिया और जब तक वो हार्वेस्ट नहीं हो गया उसी के ऊपर फोकस है। लेकिन दूसरी टाइप की फार्मिंग है, ऐसा मल्टीपल रिदम है। अब आपने 5 6 डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ लगा दी, सबके अलग अलग शेड्यूल है। ये एक महीने में पक गई, ये दूसरे महीने में, तीसरे चौथे, ऐसे अलग अलग शेड्यूल्स हैं उसके। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग रिदम। तो ये तो एक रिदम हो गया। इसके बाद में इसमें हम ऐड ऐड कर सकते हैं कि पॉलिनेशन का सीजन कब होता है और दूसरे कोई से पैटर्न है क्या। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिदम्स आ जाएंगे। द polyphonic assemblage also moves us to the unexplored territory of modern political economy. Factory labor is an exemplar of coordinated process progress time. Yet the supply chain is infused with polyphonic rhythms. Chinese garment factory इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, मल्टीपल सप्लाई लाइंस, constantly switching among orders to local boutique brands, knock-off international brands, and generic to be branded data production. तो अब एक ही प्रोडक्शन लाइन है, वो अलग अलग तरीके की चीजें बना रही है। कभी वो अपने ही लोकल बुटीक ब्रांड के लिए बनाती है, कभी इंटरनेशनल ब्रांड के लिए बनाती है, कई बार जेनरिक बना के रख देती है ताकि बाद में ब्रांड हो जाए। तो ऐसे एक ही चाइनीज की गारमेंट फैक्ट्री जो है वो अलग अलग मल्टीपल लाइन चला के बैठी हुई है। हर एक के अलग अलग स्टैंडर्ड है। ऑब्वियसली कोई इंटरनेशनल ब्रांड है उसका अलग स्टैंडर्ड होगा, जो लोकल बुटीक है उसका भी डिपेंड करेगा कि क्या उसका इमेज है, प्राइसिंग कैसी कर रहा है, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड है। मटीरियल काइंड ऑफ लेबर भी होगा। फैक्ट्री जॉब वाज टू मैच इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन विद द कॉम्प्लेक्स रिदम ऑफ सप्लाई चेन्स। The farther we stray into the peripheries of capitalist production, the more coordination between polyphonic assemblages and industrial processes become central to making a profit. तो ये सब अब बहुत सेंटर पे आ गया है कि जी जैसे जैसे कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन हो रहा है वैसे वैसे पॉलीफोनिक असेंबलीज बढ़ते जा रहे हैं और इसके अंदर प्रॉफिट जो है काफी ऐसे ही हो पा रहा है। As the last example suggests, abandoning progress rhythms to work polyphonic assemblages is not a matter of virtuous desire. Progress felt great, there was always something better ahead. The problem is that progress stopped making sense. More of us looked up and one day realized the emperor had no clothes. It is in this dilemma that new tools for noting seem to be important. Indeed, life on earth seems at stake. तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम ये पॉलीफोनिक असेंबलीज को देखने के लिए कोई हमारी डिजायर हो गई बहुत ज्यादा। अबांडनिंग प्रोग्रेस रिदम्स टू वॉच पॉलीफोनिक असेंबलीज। प्रोग्रेस जो थी वो अच्छी थी, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए कुछ और चाहिए। और प्रोग्रेस जो थी इट स्टॉप मेकिंग सेंस। ये जो एक सेंटेंस लिखा है, मोर एंड मस्ट लुक्ड अप वन डे रियलाइज्ड एम्परर हैड नो क्लोथ्स, मींस वी डिडंट रियलाइज, वी रियलाइज दैट इस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं है। एम्परर हैड नो क्लोथ्स मतलब जिसको हम एम्परर समझ के बैठे थे
वो तो एम्पर रंगा निकला, मतलब बेसिकली जो हम प्रोग्रेस समझ रहे थे वो प्रोग्रेस तो बंद हो गई है, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए हम नई टूल्स जो है वो अब हम देख रहे हैं। दिस पैसेज टॉक्स अबाउट कि जो हमने अपना एक जिस तरीके से सोचते हैं, वी फेल टू नोटिस मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ द वे आवर माइंड इज आई माइंड वर्क्स, जो हमारी स्कॉलरशिप है, जो हमारा एरोगेंस है उसके कारण। और बहुत सारी चीजें हम नहीं देखते, और जैसे जैसे प्रोग्रेस धीरे धीरे अपना ग्राउंड लूज कर रही है, उसी तरह से हम देखने लगे। तो उसने असेंबलीजेस का कॉन्सेप्ट बताया, जहाँ पे अलग अलग टाइप की डाइवर्स चीजें आके एक साथ काम करती हैं, पॉलीफोनिक होते हैं, दैट मीन्स अलग अलग रिदम होती है इनकी। उसमें उसने दो एग्जांपल दिए, एग्रीकल्चर का दिया और एक चाइनीज गारमेंट फैक्ट्री का, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें ये दोनों अगर आप करोगे पॉलीफोनिक असेंबलीज और इस तरह से रिदम के साथ में, देन थिंग्स वर्क आउट फाइन। अभी तक हम इसके ऊपर इसलिए निगाह लगा के नहीं बैठे हुए थे बिकॉज वी वर थिंकिंग ऑफ प्रोग्रेस, की प्रोग्रेस जैसे हो रही है उससे हम खुश थे, लेकिन अब हम जैसे जैसे प्रोग्रेस खत्म हो रही है वैसे वैसे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ और देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट ऑल दीज। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और वर्ड फ्रेजेस बेस्ट एनकैप्सुलेट्स द की आइडिया? इंटरकनेक्टेडनेस, देखो ये क्वेश्चन थोड़े क्या कैट में पहले आते थे, लास्ट ईयर तो मुझे लगता नहीं आया, लेकिन आते हैं। तो इसमें आपको ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस चाहिए जो कि की आइडियाज कैप्चर कर ले। इंटरकनेक्टेडनेस, तो इंटरकनेक्टेडनेस है क्या यहाँ पे? वो यहाँ पे बताया हुआ इंटरकनेक्टेडनेस इसमें। पॉलीफोनिक असेंबलीज तो है, बताया है पॉलीफोनिक असेंबलीज में। अनइंटेंशनल कोऑर्डिनेशन, ये भी है कि कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है अनइंटेंशनल में। एंड डाइवर्स रिदम्स, रिदम्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। तो ये भी ठीक ही लग रहा है, मतलब दिस लुक्स ओके। In 20th century scholarship, this is not an important concept. Assemblage, progress narratives, political economy. प्रोग्रेस नैरेटिव तो एंड में आया है कि प्रोग्रेस का जो नैरेटिव है वो रुक गया है, तो ये बीच में क्यों आएगा? पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक है, लेकिन असेंबलीज में डाइवर्स चीजें होती है वो नहीं आया, इसलिए ये गलत है। 20th सेंचुरी स्कॉलरशिप ये भी गलत है। पॉलीफोनिक असेंबलीज ठीक है। मोनोकल्चर फार्मिंग, मोनोकल्चर फार्मिंग कहाँ है? या तो डाइवर्स कल्चर फार्मिंग होगी। सप्लाई चेन यूनिफॉर्मिटी, ये तो वैसे ही, ये तो उल्टा हो गया, सप्लाई चेन तो डाइवर्स होते जा रहे हैं, तो ये वैसे ही गलत है। इंटरकनेक्टेडनेस, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, असेंबलीजेस, प्रोग्रेस ड्रिवन डेवलपमेंट, तो इसमें काफी चीजें नहीं आई हैं। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, इज इट अ मेन? इकोलॉजिकल कम्युनिटीज थोड़ी है। Ecologists turn to assemblages to get around the fixed and bounded connotations of ecological community. मतलब कम्युनिटी से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो इसने लिखा है कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी, यही गलत है। करेक्ट आंसर ए। According to the passage, all of the following are true about ecological communities except they consist of varied species influencing other in complexity. ये तो है, this is true, not the answer. The dynamics can be better understood through the concept of assembly. Yes, this is also true. The answer. They operate under rigid structure with clearly defined. Absolutely not. Absolutely not. ये ट्रू नहीं है। They don't operate under rigid structure. ये देखिए, varied species, if at all, they never settle, some thought, some this, open-ended gatherings. Interaction with them may involve cooperation, competition, or coexistence. ये दिया हुआ है यहाँ पे, thought, cooperation, coexistence, तो बहुत क्लियरली दिया हुआ। Correct answer is C. Easy question था, but this was an easy question. This you can call it difficult. This question was difficult. According to the passage in modern political economy, the concept of polyphonic assemblages illustrates the dominance of centralized control and uniform production. बिल्कुल उल्टा है, 180 degree reverse. Complexity and diversity of operations in systems like supply chain and labor. Yes, absolutely correct. Inefficiency of multiple rhythms and varied standards. नहीं यार, efficient है वो लोग, inefficient कैसे? The gradual shift towards a singular global standard. Absolutely not. मल्टीपल स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंगल कहाँ होते हैं? मुझे बिना देखे, ये दोनों क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, बिना देखे हो जाएंगे, तो आपको पैसेज को दोबारा देखने की जरूरत है।
which of the following is not an implication? देखो ये मैंने पहले गलत पढ़ लिया था, ठीक है, and I had almost done it wrong and I was not able to understand कि दो मेरे को क्यों लग रहे हैं, तीन नहीं तो दो लगने लगे थे. Then I went and read again and I found that it is not an implication. More and more of us looked one day and realized that emperor had no clothes. तो ये प्रोग्रेस से रिलेटेड था कि सडनली हमें लगने लगा कि जो प्रोग्रेस हो रही थी जिस तरीके से वो नहीं हो रही है. A growing awareness of limitations of traditional notions of progress. Yes, ये तो implication है, so this is not the answer. The realization that complex systems cannot be understood through simplistic progress narratives. Yes, I think this also is there. An increasing emphasis on linear uniform progress as the ultimate goal in modern systems. Increased emphasis on linear uniform. ये तो उल्टा बोल रहा है. Again, this is 100. So this is not an implication. This is not an implication. This is exactly reverse. The recognition of need for new perspectives to understand the complexity. Yes, this is the implication. Correct answer is C. Again, this was a moderate. इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये tricky question था ये. मैंने जब इसको करा था, I didn't read this carefully, and then I was looking at. I could rule out implication. मैं उसको देखा था implication कौन सा है. तो इसमें से ये मैंने दो मार्क कर दी, करने की कोशिश कर. Then I went back and said, oh, it's not. So then it became easier. So that's why we'll call it moderate. All right, let's go to the last passage. Right, let's go to this one. It has been customary in the past to approach Jane Austen not only as a great novelist, but also as a representative of what critics have called the feminist tradition in the English novel. So, Jane Austen, we know, Pride and Prejudice और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इसने. तो ये सिर्फ एक ग्रेट नॉवेलिस्ट ही नहीं है, बल्कि जो फेमिनिस्ट ट्रेडिशन मतलब ये है कि हाउ females are finding their role in society, what has been their traditional role and whatever social position that they've been assigned with respect to men. तो उसमें feminist tradition जो है, how they find their own feet, how do they find their place in the scene or in the system. So ये feminist tradition. तो उसने कहा कि ये जो जेन ऑस्टन के और सिर्फ एक नॉवेलिस्ट ही बल्कि एक फेमिनिस्ट ट्रेडिशन में भी रिप्रेजेंटेटिव उसको समझा जाता है, क्योंकि इसकी नॉवेल्स में women जो थी वो they had their own mind, they wanted to fall in love, then get married to the person of their choice and break the shackles that the society normally imposes on women. इस तरह से एक feminist tradition. At first glance, this seems appropriate enough. After all, it's always been one of those universally acknowledged truths that Jane Austen's narrative center on love and marriage. But more recent developments in Jane Austen criticism seem to assume that feminism in the novel should be examined as a coherent body of opinions held by the novelist on the identity and social functions of women. तो अब कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं जेन ऑस्टन की क्रिटिसिज्म के को लेके. क्रिटिसिज्म में आई मीन जेन ऑस्टन, देखो जेन ऑस्टन keeps getting read by scholars and then people come out with their own views on it. तो अभी तक तो उसको मान रहे थे कि वो फेमिनिस्ट ट्रेडिशन जो है उसी को रिप्रेजेंट करती है, लव और मैरिज वगैरह के ऊपर चलते थे उसके. लेकिन अभी जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि फेमिनिज्म जो है इस नॉवेल्स में जो है इसको एक सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल फंक्शंस ऑफ वुमेन के थ्रू एग्जामिन करना चाहिए. And insofar as this approach is based on novelist analysis of female identity, it seems to respond to contemporary pressures generated by liberation movement for thoughtful evaluation of female images in society and in literature. तो अब ये जो अप्रोच है ये लग रहा है कि कंटेम्प्रेरी प्रेशर्स जो आ रहे हैं, जो आज के जमाने के लिबरेशन मूवमेंट जो है, विमेन्स लिबरेशन, दैट मीन विमेन शुड बी free from all kind of encumbrances, they should be free to lead their life the way they want. इस तरह से वुमेन्स लिबरेशन के मूवमेंट जो आ रहे हैं और इसी कारण कंटेम्प्रेरी प्रेशर्स हो रहे हैं और वुमेन की आइडेंटिटी के बारे में बात की जा रही है. तो विमेन फीमेल की जो इमेजेस हैं सोसाइटी में और लिटरेचर में, ये इसको थॉटफुली इवॉल्वेट किया जाए. बट इवन इफ वी अज्यूम दैट लिबरेशन मूवमेंट हैज हैड दिस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, it does not follow that these recent approaches to feminism coincide with the liberationist philosophy itself, or that they even depart from those conventional notions of womanhood which are anathema to the women's liberation movement.
तो अगर हम मान भी लें कि ये लिबरेशन मूवमेंट ने इसको इन्फ्लुएंस किया इनडायरेक्टली, तो ये जो रिसेंट अप्रोचेस हैं, ये लिबरेशन फिलोसफी से कोइंसाइड नहीं करती, और बल्कि जो कन्वेंशनल नोशंस ऑफ वुमनहुड बताए गए हैं, जो कि एनाथेमा मीन विच आर अ कर्स टू वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, तो वो उससे भी अलग है। दे डिपार्ट फ्रॉम दोज कन्वेंशनल नोशन। सो अब नाउ इन सच पैसेजेस विच आर वेरी टेंस एंड विच नीड a little bit of background information, and first of all, of course, this should be done in the end, क्योंकि इसमें इसका सेंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस तरह के पैसेजेस में। और अगेन आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि इस तरह का पैसेज मैंने तो नहीं देखा कैट में कभी। सो दिस इज अ वेरी नॉन रिप्रेजेंटेटिव type of passage. Now these days, I see that there is a little bit of competition between whether it is IMS or CL, even time for that matter, to make passages more complicated than what they should be. अगर ये एक सपोज करो एक आर्टिकल ऊपर से शुरू से चला आ रहा है जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है काफी कुछ, तो ठीक है। ये तो बीच में से दो पैराग्राफ उठा के इस तरह के डेंस देते हैं, एंड ऑब्वियसली डूइंग दिस assumes that you are aware of Jane Austen, assumes that you are aware of what is feminist tradition, and you are aware of what is this liberation movement, and all of these liberationist philosophy. तो काफी कुछ इसमें अज्यूम करके चल रहा है, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स डिफिकल्ट टू डिकोड। तो आपको सिर्फ इतना समझना है इसमें, जो मोटा मोटा जो मेन आइडिया है कि जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स को जो लोग अभी तक उसका उसके बारे में बातें करते थे, रिव्यू करते थे, एनालिसिस करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, वो कहते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव है फेमिनिस्ट ट्रेडिशन का, क्योंकि उसके नॉवल जो सेंटर करते थे लव एंड मैरिज पे। लेकिन जो अभी रिसेंटली जो आइडेंटिटी और सोशल फंक्शन ऑफ वुमेन को लेके जो ओपिनियंस हैं, उसके कारण थोड़ा क्रिटिसिज्म में थोड़ा शिफ्ट आया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो नॉवल जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स है, ये फीमेल आइडेंटिटी का एनालिसिस करती है। तो इस तरीके से लोग देख रहे हैं उसको। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज एक लिबरेशन मूवमेंट है, उसके कारण कंटेम्प्रेरी प्रेशर जनरेट हुआ है, और इसका इन्फ्लुएंस है कि लोग अब इस नॉवेल्स को इस तरीके से देख रहे हैं कि वुमेन की आइडेंटिटी और सोशल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो ये बताया गया। तो ऑथर क्या इस चीज से एग्री करता है? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, अब ये ऑथर जो ये कह रहा है कि उसकी जो अप्रोच है जेन ऑस्टन की, वो एक फीमेल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट जो हुए वो बताते हैं कि नहीं, ये जो लिबरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, और आइडेंटिटी और सोशल फंक्शंस की बातें होती थी जेन ऑस्टन के नॉवल में। तो क्या ये सच्चाई है? यही देखना है हमें। अब एक सिल्विया मायर्स है, स्टडी ऑफ वुमेनहुड इन जेम्स ऑस्टिन नॉवल इज इलस्ट्रेटेड। उन्होंने जेम्स ऑस्टिन के नॉवल में वुमेनहुड को स्टडी किया है सिल्विया ने। और इन्होंने एक यान वैट्स उसके व्यू को ऑब्जेक्ट किया है कि feminine and adolescent values are painfully educated in the norms of mature, rational and educated male world. तो यान वॉट्स का व्यू है कि जेन ऑस्टन की जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी फेमिनिन और एडोलेसेंट वैल्यूज है, ये बेसिकली हम एक तरह से जो मेच्योर रैशनल एजुकेटेड मेल वर्ल्ड है उसके नॉर्म्स में देखते हैं, मतलब उसके उससे इवेलुएट करते हैं। सपोज करो कि मेल एक रैशनल है, मेच्योर आदमी है, एजुकेटेड है, तो हम वुमेन को उसके से तराजू में तोल देते हैं। जो वुमेन की और फेमिनिन और एडोलेसेंट वैल्यू है, उसको उस टर्म्स में हम देखते हैं। राइट, सो this Sylvia is objecting to this Ian Watts view. But although Myers rejects Watts' thesis that bald dichotomy means clear two things. Dichotomy means कि या तो ये या वो ना, तो विमेन है तो इस तरह से उसकी एडोलेसेंट वैल्यूज होगी, फेमिनिन वैल्यू होगी, मेल है तो रैशनल, मेच्योर, एजुकेटेड होगा। तो इस तरह की बॉल्ड डाइकोटमी है, ये अनफेयर है वुमेन को, इस चीज को रिजेक्ट कर देती है। हर ओन सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ वुमेनहुड इन जेन ऑस्टन नॉवेल इज बेस्ड ऑन व्हाट शी डिस्क्राइब्स एज पोस्ट फ्रॉइडन स्कीमा। ये एक नया आ गया। फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, हमें पता है, उन्होंने साइको एनालिसिस का जन्म दिया था। राइट, ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। तो पोस्ट फ्रॉइडियन स्कीमा, तो सिल्विया जो है वो इस तरह से बताती हैं कि इन टर्म्स ऑफ सोमैटिक मीन बॉडी, कि बॉडी की एग्जिस्टेंस में ईच सेक्स एग्जिस्ट विद इन इट्स ओन बॉडी प्लान। वुमन इज एंडाउड विद एंड अवेयर ऑफ हर इनर स्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड नर्चर अ चाइल्ड। तो उसकी जो वुमेन है, उसकी उस तरीके से एक आइडेंटिटी बन जाएगी। According to the somatic scheme of womanhood, the maturation of an Emma Woodhouse, a titular protagonist in
Austen's novel Emma is defined as Emma's discovery of her own need for love, physical fulfillment for children. Curiously enough, Myers has attempted to rebuild the pejorative implications of Ian Watt's bald dichotomy by appealing to those biologically based concepts of womanhood which now have come into disrepute as limiting and patronizing definitions of female identity. So, rebut means challenge. Pejorative means insulting. तो यान वॉट की जो बॉल्ड डाइकोटमी थी जिसमें विमेन को इस तरह से बताया गया मेल के टर्म्स में, तो उसके ऑब्वियसली नेगेटिव इम्प्लीकेशंस थे, तो उसको उन्होंने कोशिश की है कि चैलेंज करें बाय by appealing to those biologically based concepts of womanhood which are now come under disrepute. लेकिन उन्होंने भी रेफर किसको किया, चैलेंज करने के लिए क्या यूज किया, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो कि खुद ही अपने आप में डिसअप्रूव आ चुके हैं एज लिमिटिंग एंड पेट्रोनाइजिंग डेफिनेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी, जो कि खुद ही अपने आप में एक लिमिटिंग और पेट्रोनाइजिंग डेफिनेशन करते हैं. For it is important to note that Myers is not merely attributing a certain somatic concept of womanhood to Jane Austen, but has actually postulated this thought post-Freudian thesis as definitive standard by which feminism should be judged. So Myers जो है वो सिर्फ एक सोमैटिक कॉन्सेप्ट नहीं इसको एट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ये जो पोस्ट फ्रॉइडियन थीसिस है ये एक डेफिनेटिव स्टैंडर्ड है जिसमें कि जिससे कि हमें जेन ऑस्टन को जज करना चाहिए, ऐसा बोल रही है. Similarly, a psychoanalytical study by Helen Corsa sums up the significance of Emma's human growth by appealing to conventional image of the woman as a being with instinctual needs for marriage and motherhood. Her woman's womanly instinctual needs, desire for love during marriage, motherhood are all obvious in her role as matchmaker. Her instance playing out that role and leads out came into reality. These studies are relevant because they illustrate very well some of the problems which now arise whenever we attempt to describe feminism or womanhood in Jane Austen's writing or any other. तो ऑथर बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जेन ऑस्टन का जो क्रिटिसिज्म चल पड़ा है अभी आजकल इन टर्म्स ऑफ जो लिबरलाइजेशन, जो वुमेन्स लिबरेशन वाली बात है, वो ठीक नहीं है. एंड इट हैज गिवन टू एग्जांपल्स, सिल्विया मायर्स और इयान वॉट्स. तो इयान वॉट्स ने कहा है कि वुमेन को मेन के टर्म्स में देखना चाहिए, सिल्विया मायर्स ने कहा है कि उसको अपने बॉडी बायोलॉजिकल टर्म्स में देखना चाहिए. तो ये दोनों ही ठीक एटीट्यूड नहीं है, ऐसा ऑथर के हिसाब से बोला जा रहा है. सो वेरी वेरी वेग हेजी काइंड ऑफ पैसेज विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली टू अंडरस्टैंड. ओके, इसमें इस तरह के पैसेज में एक चीज होती है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते. तो लेट्स सी, एंड इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो क्विकली हो जाए तो आपको कर लेना चाहिए आपको, नहीं तो डोंट इवन टच दिस काइंड ऑफ पैसेज. What is the main argument of the passage? The contemporary approach to defining feminism and womanhood in Jane Austen's work may not accurately reflect Austen. ये देखो यहाँ मिल गया आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच, जो आज की अप्रोच है फेमिनिज्म को डिफाइन करने की, जिस तरीके से उसने सिल्विया मायर्स की बात की है कि उसने बॉडी के थ्रू बताया, बायोलॉजी के थ्रू, और इयान वॉट्स का बताया कि उसको मेन के टर्म्स में, तो ये करेक्ट नहीं है. दे मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ऑस्टन्स व्यू पॉइंट्स, राइट. ये अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसने यही बात कही है कि ये ठीक नहीं है. Jane Austen novels should be read and understood solely in the context of contemporary women's liberation movement. ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लिबरेशन मूवमेंट जो है वो these recent approaches coincide with the it does not follow that these coincide with the liberationist philosophy. गलत. सिल्विया मायर्स एंड एनालिसिस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स, एक्यूरेट कौन डिसाइड करेगा, ये तो ऑथर कह रहा है नहीं. Jane Austen narrative are primarily focused on romantic themes with little emphasis on modern society नहीं बोल रहा है. करेक्ट आंसर ए है. So this was, I would say, a I mean, पैसेज अगर सर्वाइव कर गया, पहले बात तो पैसेज सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, कर गया तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इजी था, पहले पहले ही दे दिया उसने. According to the passage, Sylvia Mayer's study of womanhood in Jane Austen novel primary focus on, ये भी इजी क्वेश्चन है. सिल्विया मायर जो है वो बायोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है, राइट. उसने क्लियरली कहा है कि पोस्ट Freudian in terms of existence, each sex within its own bodily plan, biological structure, nurture a child, somatic womanhood, ये सब बातें नहीं. सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है, लिबरेटेड व्यू नहीं है, बायोलॉजिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, ये बिल्कुल ही गलत. So this also turned out to be easy if at all you survive the passage.
According to the author, both Ian Watts and Myers in their analysis of Jane Austen's work align their views with contemporary women's liberation. ऐसा तो नहीं. Focus on political and social influences. Agree on a unified feminist? बिल्कुल नहीं. They don't agree. Offer interpretations that are oversimplifications of Austen characters. तो ये यहाँ पे बताया इसमें यहाँ पे कि इन्होंने ये जो पैराग्राफ में बताया है, तो इससे डायरेक्टली नहीं लिखा लेकिन इन्फर कर सकते हैं दैट सिल्विया और इयान वॉट्स ने जिस तरीके से वुमनहुड को डिफाइन किया है इसमें और ऑस्टन की नॉवेल्स में, वो एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है ना. दैट मीन्स कि वो बॉडी को लेके और डाइकोटमी को लेके, सो दैट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन. दिस लुक टू बी ओके. देखो ये जो तीनों है ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है. ये एक नेगेटिव है, ऑथर इसमें नेगेटिव बात कर रहा है, तो इसलिए इस हिसाब से भी ये ना कर सकते हो. Difficult question, no doubt, very difficult question. Rather, I would say very difficult. According to the passage, the contemporary views on female identity have affected Jane Austen's criticism in all of the following ways, except encouraging a more coherent feminist perspective within the analysis of Austen's work. So, encouraging a more coherent feminist perspective, ये तो किया है, हाँ है कि coherent वो चाहिए हमें, ये लिखा है, should be examined as coherent body of opinions. So, this is okay, not the answer. Promoting careful evaluation of female images in response to liberation, ये भी लिखा हुआ है कि इसकी जो इमेजेस हैं वो तो इमेजेस के ऊपर तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. It seems to respond to contemporary pressure generated by liberation movement for thoughtful evaluation of female images in society and literature. Right, so careful evaluation of female images, ये तो लिखा हुआ है, not the answer. Leading to analysis that directly reflect the philosophy of liberation. Now ये गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि these, it does not follow that these recent approaches coincide with the liberationist philosophy itself. That means this is not correct. Leading to analysis that directly reflect, this is not correct. So this is the correct answer. Shifting the focus from Austen's exploration of female identity and social function. Yes, two words. This is the correct interpretation. So C was the correct answer. So again, I would say this is a difficult question. So काफी absurd सा passage था ये, इसमें कोई doubt नहीं है. इस तरह के passage I have not seen. Very very dense, and, very difficult to comprehend. And therefore one should not waste time. So इसलिए मैंने इसको end में किया. So I hope the questions, passages, everything is clear. इसमें अगर हम डिसेंट स्कोर के लिए हम दो पैसेज ये कर लेते, 3, 4 और एक 2 कर लेते हैं, और उसमें से 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं अगर ये के, बिकॉज ये में भी एक बहुत ही अब्जर्ड दे दी गई है ये. राइट, सो 17-18 क्वेश्चन कर लेते, शुड हैव बीन फाइन. सो दैट्स इट. थैंक यू.